Welcome, everyone. Welcome to another session of our Entrepreneurs in Conversation series at the Incubation Center here at LUMS. Today, we have the pleasure of having Talha Munir Khan with us. Talha has been part of the Knowledge Platform Pakistan since 2001 and is also Chief Technology Officer at Knowledge Platform Global. The Singapore-based company is one of Asia Pacific's leading next-generation learning solutions that provides holistic learning solutions for clients in the form of strategy, content, technology, and support. A warm welcome to you, Hamza. I will leave you to talk about the company, but I would like to tell our audience a few of your achievements. So Talha has led the design and implementation of Knowledge Platform Pakistan, Pakistan's first cloud-based learning platform, which was awarded with prestigious Brandon Hall Gold Achievement and Silver Award in 2014. He has extensive experience in building extensive teams, leading operations, strategic thinking, and product management, thereby creating a customer-focused culture and products. With a deep knowledge of learning solutions, he is considered an expert in the corporate and K-12 learning sectors. Talha has remained on the board of Pakistan Software Association and has also served as Secretary General there. He has a master's and bachelor's degree in computer sciences from the International Islamic University, Islamabad. Talha, so good to have you with us today. Education and specifically digital education and online learning is very dear to me personally, because of my career and how this profession has grown onto me. And also because in our present cohorts of Lahore and Quetta, we have many people in the EdTech area who were really wanting to listen to someone in Pakistan working in this sector, because there's very little information available here. So I'm really, really glad for having you here. So Talha, I think let's begin the conversation. I think all of us, including myself, would like to learn a little more about Knowledge Platform first, because I know it is a Singapore-based company, but has very extensive Pakistan operations, as your website talks about. And I think post-COVID, probably the things must have really escalated in terms of products and services. So we'll start with an introduction of Knowledge Platform first. Welcome, Talha. Thank you so much, Saima, and the whole NIC team for inviting me on this platform. So I would start, I think, let me start sharing my screen, and I would first I can take you through a brief presentation, जिसके बाद जो है हम डिस्कशन या क्वेश्चन आंसर का सेशन कर सकते हैं. और अगर उस प्रेजेंटेशन के ब्रीफ प्रेजेंटेशन विच वुड टेक रफली 10 to 15 मिनट्स, उसके दौरान भी अगर आपके कोई क्वेश्चंस हों, so as a moderator, you can you stop me and ask me before I move forward, and then we can open the floor for the discussion about education. So can you see my screen? It's perfectly visible. Thank you so much. So, I mean, Saima briefly gave the introduction. Knowledge Platform का ये 2000 में सिंगापुर में it was founded. और पिछले मतलब जो फर्स्ट 14 years थे कंपनी में, वो हमने कॉर्पोरेट लर्निंग के ऊपर काम किया, जिसमें हमारा फोकस कॉर्पोरेट्स को ऑनलाइन ई लर्निंग प्रोवाइड करना था, जिसके अंदर उनको प्लेटफॉर्म देना, उनके लिए डिजिटल कंटेंट क्रिएट करना, उनके इंटरनल इनेबलमेंट करना कि उनके अपने लोग कंटेंट क्रिएशन कर सकें, और सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करना अराउंड लर्निंग. सो वी हैव बीन वर्किंग हमारा जो सारा फोकस है वो ऑनलाइन लर्निंग के ऊपर रहा है. मगर पहले 14 साल तकरीबन 2014 तक वी वर फोकस्ड ऑन कॉर्पोरेट लर्निंग, और 500 से ज़्यादा
कंपनीज अराउंड द वर्ल्ड, जिसमें फार्मास्यूटिकल कंपनीज, एयरलाइंस, ये सारे हमारे क्लाइंट्स थे। और इनको हम या तो हम डिजिटल कंटेंट बना के दे रहे थे, या फिर हम उनको टेक्नोलॉजी यानी लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम दे रहे थे एज अ मैनेज सर्विस, या फिर हम सारी सोल्यूशन बोथ टेक्नोलॉजी एंड कंटेंट्स दे रहे थे। तो 2014 में के बाद तकरीबन वी डिसाइडेड कि ये जो हम काम कर रहे हैं, वी आर नॉट क्रिएटिंग एनी सोशल इम्पैक्ट, एंड इफ़ वी do the same, if we start working in the school education or K to 12 education, then we can create a social impact. So we sold that corporate learning business to Thomson Reuters, and then we started focusing towards K to 12 education. उसमें तकरीबन पहले 2 साल हमें लगे, ट्रांजिशन जो हमारा चल रहा था उसके साथ साथ we started looking at what we need to work. And पाकिस्तान में फिर we started and came up with an idea जो मैं आपको explain करूँगा, जो हमारी product का core idea है. The first solution we came up with, and how we took it to China, and then also then took it back to Pakistan, and then started expanding in Pakistan. हमारा मिशन है वो ये कि हम पाकिस्तान की जो एजुकेशन को हम ट्रांसफॉर्म कर सकें इनसाइड आउट, एंड हमें ये यकीन है कि ये हम काम अकेले नहीं कर सकते। इसके अंदर हमें ऐसे सॉल्यूशंस, ऐसी प्रोडक्ट्स देनी पड़ेंगी जो स्टूडेंट्स के लिए भी हों, जो टीचर्स के लिए भी हों, जो इंस्टीट्यूशंस के लिए भी हों, यानी स्कूल्स या नेटवर्क्स उनके लिए भी हों। उसमें पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा। उसके अंदर जो अदर ऑर्गेनाइजेशंस वर्किंग इन द एजुकेशन स्पेस हैं उनको भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा। So what we want to do is to provide solutions and products basically for all of these stakeholders, and focus on improving the quality of education, better teaching and learning. So this is our mission. We have been working in the past in Pakistan specifically. So यहाँ पे जो अभी जो आप देखेंगे ज़्यादा, इसमें आगे मैं आपको जर्नी दिखाता हूँ नॉलेज प्लेटफॉर्म की पाकिस्तान में। लेकिन जो ज़्यादा फोकस है इस वक्त वो पाकिस्तान के ऊपर है। हाउ वी फ्रॉम अ कॉर्पोरेट लर्निंग हम कैसे मूव हुए, इसको एक पाकिस्तानी स्टार्टअप बनाया कैसे हमने, और कैसे हमने फंड रेजिंग की पाकिस्तान में। ये सब दीज आर सम ऑफ द क्लाइंट जिनके साथ हमने काम किया हुआ है। ये हमारी जर्नी है। हमने 2016 में से पहले पाकिस्तान में एक ब्लेंडेड लर्निंग सॉल्यूशन बनाया था, जो पायलट किया था, एंड देन वो 2017 में फाइनली पाकिस्तान के अंदर हमने पायलट करना शुरू किया। और ये सॉल्यूशन जब हमने बनाया तो उस वक्त 2014 में कोई यकीन नहीं करता था कि ब्लेंडेड लर्निंग या टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन पाकिस्तान में इस्तेमाल हो सकती है। और जब भी हम स्कूल्स के पास जाते थे तो वो ये कहते थे कि जी ये शायद सिंगापुर में या पाकिस्तान से बाहर तो ये इस तरह की प्रोडक्ट्स इस्तेमाल हो सकती हैं, पाकिस्तान में नहीं हो सकती। तो इनिशियली हमने गवर्नमेंट के साथ ट्राई किया काफ़ी 2014-15 में, एंड देन 2015 में वी टूक द प्रोडक्ट टू चाइना। वहाँ पे हमने एक जॉइंट वेंचर किया, और ये दिस वाज द फर्स्ट एग्जांपल कि जो टेक्नोलॉजी हमने पाकिस्तान में बिल्ड की थी वी टूक टू चाइना, और वहाँ पे दे स्टार्टेड यूजिंग विद वन पब्लिक स्कूल इन शंघाई। और अब 1000 से ज़्यादा स्कूल्स हैं जो हमारी, और 4 लाख से ज़्यादा बच्चे जो इस्तेमाल कर रहे हैं हमारी प्रोडक्ट को चाइना में। तो पाकिस्तान में हमने दोबारा अपना फोकस 2017 में स्टार्ट किया विद लर्न स्मार्ट क्लासरूम। एक हमने पायलट किया, फिर we won a couple of big contracts from Jazz and Ilm Ideas too, जो कि एक DFID funded project था to expand the Learn Smart Classroom solution, जो कि हमारा blended learning solution है, और ये मैं आपको आगे बताऊंगा कि ये क्या है और कैसे काम करता है। Then we started also raising money within Pakistan as a Pakistani entity, and on the valuation of the Pakistani company. और 2018 में we started with and by end of 2018 we went into 99 schools, about 40,000 students. और 2019 में then we raised completed series A funding round, तो तकरीबन हमने टारगेट किया था 250 million rupees, and then we raised
329 million। और इसके जो लीड इन्वेस्टर्स हैं उसमें बीकन हाउस स्कूल सिस्टम, लैक्सन वेंचर कैपिटल और जेएस ग्रुप शामिल है। तो बाय जी जी मेरा ख्याल है बहुत सारे मेरे स्टार्टअप्स का भी, हमारे एनआईसी के स्टार्टअप्स का भी यही क्वेश्चन था कि जैसे भी आप कह रहे हो कि पाकिस्तान में बहुत मुश्किल था लोगों को कन्विंस करना कि ऑनलाइन लर्निंग हो सकती है। सो बीकन हाउस तो मुझे समझ आती है, वो एजुकेशन के अंदर खुद से थे, लेकिन लैक्सन और जेएस ग्रुप एंड जैज, कितनी डिफिकल्ट जर्नी थी उनको एक्सप्लेन करना अबाउट द पोटेंशियल ऑफ दिस बिजनेस एंड वेयर यू वर गोइंग। And another comment, I think 2017 was a great time to relaunch it because COVID was right around the corner. जी, आई थिंक आपकी बात सही है। जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया, जब 2014-15 में हमने ब्लेंडेड लर्निंग का प्रोडक्ट बनाया और हमने इसको एक चंद स्कूल में पायलट किया, तो उस वक्त हमें जो मार्केट से रिएक्शन मिल रहा था वो स्कूल्स भी रेडी नहीं थे, एंड दे यूज्ड टू बिलीव के पाकिस्तान में अभी टेक्नोलॉजी स्कूल्स के अंदर इसकी ज़रूरत नहीं है और ये काम नहीं करेगी। इंटरेस्टिंगली जब हमने 2017 में पब्लिक स्कूल्स के साथ जैज़ के प्रोग्राम एक हमने जो जैज़ ने फंड किया था, 75 स्कूल्स हाई स्कूल्स जो कि गर्ल्स स्कूल्स थे, उसमें तकरीबन 30,000 बच्चियाँ, और 75 स्कूल में हमने प्लान इम्प्लीमेंट किया पहली दफ़ा किसी बड़े स्केल के ऊपर। उससे पहले हम 10 to 15 स्कूल्स में काम कर रहे थे। तो आई थिंक इट्स अ स्टेप बाय स्टेप जर्नी के पहले हमने 10 to 15 स्कूल्स के साथ किया, फिर वी एक्सपेंडेड इट टू 75 स्कूल्स in Islamabad, which was the first big scale project that we did. And then we started going after the private school in 2018, the first quarter of 2018. तो ये जितने private schools मैं आपको बता रहा हूँ, तकरीबन इस बार we are working with more than around 1000 schools in Pakistan, जिसमें से सिर्फ 75 public schools हैं। तो बाकी जितने private schools हैं about 925, ये तकरीबन जनवरी 2018 से लेके 2020 तक के पीरियड में आए हैं। And when we went back in 2018 and started selling this solution, then we found that they were more ready. They started accepting कि जो technology है वो ज़िंदगी में changes ला रही है, the way they communicate now using mobile phone, everything। तो 10 साल पहले तक उन्होंने नहीं सोचा था। तो अब वो जब दे स्टार्ट रियलाइजिंग के एजुकेशन के अंदर भी टेक्नोलॉजी को वो एक बहुत लंबे अरसे तक अवॉइड नहीं कर सकते, तो एक एक्सेप्टेंस हमने देखी स्कूल्स के अंदर, प्रिंसिपल्स में, टीचर्स में, वेयर दे स्टार्टेड सेइंग ओके दिस इज नीडेड, राइट। सो हम जब 2018 में जाके हमने लोगों को बताना शुरू किया, तो एटलीस्ट फ्रॉम अ एंड यूजर और क्लाइंट परस्पेक्टिव दे बिलीव्ड इन द सोल्यूशन एंड द आइडिया। वो प्राइसिंग पे बात कर रहे थे या स्केल कैसे करना है और चैलेंजेस पे बात कर रहे थे, लेकिन दे स्टॉप्ड सेइंग कि इट कैन नॉट वर्क। सो आई थिंक फिर स्कूल्स के साथ जो जर्नी हमने शुरू किया, प्राइवेट स्कूल्स को ऑन बोर्ड लाना शुरू किया, तो आप देख सकती हैं कि 2019 में हमारे 300 प्लस प्राइवेट स्कूल्स थे, विच बेसिकली उनमें से कुछ वी ब्रॉट अबाउट 14 एजुकेटर स्कूल जो कि बीकन हाउस के अंडर आते हैं डायरेक्टली। सो आई थिंक जिससे ये आइडिया हुआ कि ये मार्केट एग्जिस्ट करती है, और जो हमारे चाहे वो एजुकेशनल हेडक्वार्टर्स थे, ग्रुप्स थे जो पाकिस्तान में, दे स्टार्टेड नोटिसिंग। वी डिड in 1 year about 35 big events, जो कि हर शहर में हमने 200 से लेके from 100 to 400 प्रिंसिपल्स के साथ हमने एक साल में इवेंट्स किए पूरे पंजाब और केपीके के अंदर बहुत सारे शहरों में, where we used to go and do the educational conferences and about future of education, and then उनको orientation देना और कहाँ दुनिया जा रही है, and then telling them about our product. So this is how we created the awareness तकरीबन एक साल में between 2018-19, and then we started getting noticed कि जी ये schools use कर रहे हैं solution privately, and then that help us to talk to Beacon House and others, and similarly get people on the VC side. So I was this. So this is the summary, and then this, we are now trying to raise a bridge round for for this year, and for 1 year from now we will be raising Series B funding.
So this was the summary. So in terms of जो हमारी products हैं, जो दो segments के अंदर हैं, एक तो B2B segment के अंदर and then एक B2C. तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि we started working mostly with schools. That is B2B. We came up with this product जो Learn Smart Classroom है, और अभी 454 schools जो हैं ये product use कर रहे हैं 55 cities of पाकिस्तान में. ये प्रोडक्ट हम स्कूल्स को दे रहे थे, विच इज़ अ ब्लेंडेड लर्निंग प्रोडक्ट. इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करता हूँ. लेकिन जब कोविड आया तो फिर सारा फोकस हमारा स्कूल्स बंद हो गए, एंड देन वी लॉन्च अप ऑनलाइन ओनली वर्जन ऑफ दिस प्रोडक्ट, जिसमें स्कूल्स को सेट अप देयर क्लासेस एंड invite students, and they started doing asynchronous learning हमारे solution के through अप्रैल से. तो इसमें कोई तकरीबन अप्रैल से वी अभी तक 530 schools got on board, जिसके अंदर and about 78,000 students in 68 cities. So total हमारे तकरीबन अब we are working on the B2B side, 984 schools, 170,000 students in 123 cities of Pakistan. ये जो B2C हम बात कर रहे हैं और B2B बात कर रहे हैं, इनमें were they customized solutions for schools, या आपकी कोई स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट है जो खरीद रहे थे? जी, ये हमारी स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट है जो खरीद रहे थे, जो कैंड सोल्यूशन था, जो हमने अपना डिजिटल कंटेंट बनाया था और पूरा लर्निंग प्लेटफॉर्म बनाया था. They were buying that, and कुछ cases के अंदर we slightly modified the product for sophisticated clients, like जब educators के हम 200 schools को on board लाए, तो उनका जो brand था एक separate launch किया Edge के नाम से, Educators Edge, कि वो schools जो इस solution को opt करेंगे they will be called as Educator Edge schools. तो उस तरह के बड़ी partnerships के cases में where we were getting a lot of schools on board, we did some customizations to our product in terms of content and technology both. But otherwise, for rest of the schools, it was a generic project. And I'll come to that के COVID के period के अंदर हमें क्या demands आई और हमने कैसे product को evaluate किया. B2C की side के ऊपर ये जब हमने अपना product launch किया, तो we thought कि क्यों ना हम जो भी कंटेंट बना रहे हैं डिजिटल, ये हम ऑनलाइन बच्चों के लिए पाकिस्तान में पूरे बच्चों के लिए अवेलेबल कर दें, या हम स्कूल्स को दे रहे हैं तो डायरेक्टली बच्चों के लिए सिर्फ दे दें फ्री. तो वी केप्ट इट फ्री टिल दिस ईयर जून तक, एंड 2015-14 में हमने इसको बड़ा लो स्केल पे स्टार्ट किया एज एन एक्सपेरिमेंट, जस्ट टू सी कि बच्चे ऑनलाइन लर्निंग करते हैं नहीं करते, और इसकी जो ग्रोथ थी वो पिछले 2-3 साल के अंदर ज़्यादा हुई. We have now 124,000 students इस प्लेटफॉर्म पे. लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस साल में जब हम कर रहे थे स्कूल्स के साथ, तो वी फेल्ट के स्टार्टेड कैनिबलाइजिंग, जो हमारे स्कूल्स थे वो कहना शुरू हो गया कि ये कंटेंट आप फ्री दे रहे हैं डायरेक्टली बच्चों को. तो देन वी बेसिकली इसको हमने फ्री की बजाय वी मेक इट पेड, ताकि जो हमारी स्कूल की जो प्रोडक्ट है उन पे इम्पैक्ट ना हो. But it was a great experience. We created a whole gamified cloud platform जिसमें monthly challenges होते थे. They used to win honey coins, और उन honey coins की base पे they could gather the honey coins, and जैसे credit card points होते हैं और उसके ऊपर आप redeem कर सकते हैं. उस तरह से हमारे rewards थे जो हर महीने हम upload करते थे. So they used to redeem them. So it was a great platform. But we have now launched a separate free competitions platform which is completely free, where students can come. और इस प्लेटफॉर्म की खास बात यह है कि इसमें मल्टीप्लेयर गेम्स भी हो सकती हैं. सो अगर एक दोस्त दूसरे दोस्त को मैथ का 6th grade का चैलेंज देना चाहे एक पर्टिकुलर टॉपिक या सब्जेक्ट का, तो दे कैन कम्पीट विद ईच अदर थ्रू अ मल्टीप्लेयर गेम. इसी तरह फिर Atala, I have a question here. ये जो सारे हमारी products हैं which you are making here, ये क्या हमारे रेगुलर पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के करिकुलम के ऊपर बेस्ड थी, या OA लेवल IGCSE किस करिकुलम के ऊपर बेस्ड थी ये प्रोडक्ट्स एंड गेम्स? क्योंकि गेम्स भी आप कह रहे हो एजुकेशनल गेम्स थी, कॉन्टेस्ट थे which I've seen on your website also.
So iska what is the foundation of these products? जो हमने फोकस सारा अपना रखा और नेशनल करिकुलम के ऊपर रखा, और बिकॉज अगर आप देखें तो जो 50 मिलियन स्टूडेंट्स हैं उनमें ज़्यादातर जो है हमारे नेशनल करिकुलम को फॉलो कर रहे हैं, अदर देन ओ एंड ए लेवल्स के जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत कम हैं. तो वी फोकस्ड ऑन नेशनल करिकुलम, और हमने नेशनल करिकुलम जो डिफ़ाइन किया गया था उसको यूज़ किया. फॉर एग्जांपल 6 से 10 तक के अंदर मैथ, इंग्लिश, साइंस जो हमारे सब्जेक्ट्स थे उस पर हमने फोकस किया, और नेशनल करिकुलम में जितने SLOs हैं उनको हमने फॉलो किया. और फिर फर्दर हमने उन SLOs को छोटी छोटी स्किल्स में डिवाइड कर दिया. जैसे US में कॉमन कोर स्टैंडर्ड है जिसमें आप यू डिफाइन द स्टैंडर्ड, जो कि बहुत छोटे लेवल पे आप डिफाइन करते हैं. फॉर एग्जांपल एबिलिटी टू फाइंड रो एंड कॉलम ऑफ अ मैट्रिक्स, ये एक स्टैंडर्ड है. हम इसको स्किल कहते हैं अपने सिस्टम में. सो व्हाट वी डिड वाज दैट वी डीकंस्ट्रक्टेड द करिकुलम, द नेशनल करिकुलम, इनटू दीज स्मॉल स्किल्स, and we came up with about 3,000 skills, for example for grade 6 to 10 math, English and science. और फिर हर स्किल के लिए we started creating an animated video, a set of 20 questions which included conceptual questions, application questions, integration questions, so basically based on a simplified Bloom's taxonomy. And then we also developed games or activities for each of these skills. So उसका फ़ायदा ये हुआ कि चूँकि हम we built a whole then content management system on our platform, जिसमें we created content on these skills level, which meant that अगर हमने एक let's say एक ऑक्सफोर्ड की टेक्स्ट बुक के लिए content बनाना है तो we could create a digital textbook and we could list all the chapters, and then we could remap the skills from our bank. चूँकि वो भी बुक में भी देखें तो आप SLOs और एक चैप्टर का टॉपिक होता है, एक चैप्टर होता है और या टॉपिक, एंड देन उसके अंदर सब टॉपिक्स होते हैं या SLOs होते हैं, एंड देन दे सिंपली have content on the SLOs. So we can then analyze our content and then we can remap it to any textbook. So we have actually created, because we are working with so many private schools, so we have created more than 200 textbooks from grade 6 to 10, in fact grade 1 to 10. So this can give you an idea कि कितनी ज़्यादा different तरह की textbook हम की support provide कर रहे हैं. But this is our content, so ये नहीं होता कि हम उसकी e-book create करते हैं. This is all our content जिसको हम remap करते हैं उस textbook के लिहाज से जो उसमें पढ़ाया जा रहा होता है. I hope that answers your question. It does. I think I would like to ask a follow-up question, but later, about the team behind Knowledge Platform, because there seems to be a lot of research going on. आप यहाँ पर psychology की भी बात कर रहे हो, आप यहाँ पर research की भी बात कर रहे हो, फिर हम अपने teachers की भी बात कर रहे हैं. But I think I'll follow it up. We can go forward. जी, briefly I would answer that कि हमारे पास इस वक्त we have a team of about 110 people in Pakistan, जिसमें से तकरीबन about 90 people are in Islamabad, and then rest of the people are in different cities of Pakistan, जिसमें 2 लोग एक city में 2, and similarly to provide support to schools. And then there's 3 sub teams. एक हमारी digital content development की team है जिसके अंदर हमारे पास math, English और science के experts हैं, instructional designer, graphic designers, so we develop all the content in-house. Then we have a technology team of about 35 people जिसके अंदर then we have sub teams like एक artificial intelligence के platform की team है, then backend platform, then mobile platform, then IT, then quality assurance. So and then similarly हमारी तीसरी बड़ी जो team है वो schools outreach and engagement है, जिसके अंदर ये वो लोग हैं जो schools को जाके solution pitch करते हैं, उनको on board लाते हैं, demos देते हैं, फिर engagement which means support provide करते हैं schools को. और we have a very unique model which I will explain you कि हम schools में actually जाते हैं और उनको monthly basis पे in school visit करते हैं हमारी. That's part of our contract, so I will show you that, which is part of our blended learning solution. So I'll quickly wrap up this slide and move forward. So जब हमने काम करना शुरू किया schools के साथ और ख़ास तौर पे private schools के साथ, तो हमें realize हुआ, और ये मैं आपको थोड़ा सा अगर आइडिया दे दूं कि पाकिस्तान के अंदर
50 मिलियन स्कूल गोइंग एज के बच्चे हैं जो स्कूल जा रहे हैं ग्रेड 1 से 12 तक। उन 50 मिलियन में से 28 मिलियन बच्चे जो हैं वो पब्लिक स्कूल्स के अंदर पढ़ते हैं और 22 मिलियन बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। तो जो अगर आप टॉप स्कूल्स ले लें जिसमें एजुकेटर, बीकन हाउस, सिटी स्कूल, ग्रामर और इस तरह के जो टॉप स्कूल चेन्स हैं, उनके अंदर टोटल रफली 1 मिलियन बच्चे पढ़ते हैं। तो जो हमारे 21 मिलियन बच्चे हैं, they study in rest of the private schools market. So that will give you the idea of the private school market in Pakistan, which has grown really. एक मशरूम ग्रोथ हुई है पिछले 10 साल के अंदर पाकिस्तान में प्राइवेट स्कूल्स की। और उसकी वजह यह है कि जो पब्लिक सेक्टर में जो नए स्कूल्स की जो ग्रोथ रेट है वो 0.6% पर एनम है, यानी हर साल 0.6% ग्रो हो रही है, नए स्कूल्स बन रहे हैं। जबकि जो प्राइवेट सेक्टर, जो हमारी ग्रोथ है पॉपुलेशन की बहुत ज़्यादा थी, तो दीज प्राइवेट स्कूल्स प्लेड अ बिग रोल। आप सोचिए कि अगर ये प्राइवेट स्कूल नहीं आते और ये बच्चों को एजुकेशन ऑफर नहीं कर रहे होते, तो ये जो 21 मिलियन बच्चे इन प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, या 22 मिलियन इनफैक्ट, सॉरी, इंक्लूडिंग द टॉप प्राइवेट स्कूल, ये भी स्कूल से बाहर होते। और आपको पता होगा कि हमारे मुल्क में 22 मिलियन बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं, राइट। सो वी रियलाइज के प्राइवेट स्कूल में जो बहुत ज़्यादा टीचर्स को तकरीबन 10,000 रुपये पर मंथ भी पे किया जाता है, बाज़ केसेस में इससे भी कम, बिटवीन 10 to 15, डिपेंडिंग ऑन के उनकी क्या क्वालिफिकेशन है। किसी ने बैचलर्स किया होता है, किसी ने इवन अगर बहुत रिमोट एरिया का स्कूल है तो शायद FSC की हो टीचर ने। तो बहुत डिफरेंट डायनेमिक्स हैं। और 500 रुपये से पर मंथ से लेके ऐसे स्कूल्स वो 5,000 रुपये तक फ़ी चार्ज कर रहे हैं पर मंथ बच्चों से। तो उसमें जो टीचर्स हैं उनकी अपनी डिफ़िकल्टीज़ हैं। उनमें हम भी फाउंड के टीचर्स की अपनी जो सब्जेक्ट की नॉलेज है वो कंप्लीट नहीं है, वो भी इसी एजुकेशन सिस्टम से पढ़ के निकले हैं। और इस एजुकेशन सिस्टम में हमारे यहाँ जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है 2019 की, उसके मुताबिक हमारा बच्चा 39% प्रोडक्टिव होता है एज़ कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड when they get complete their education by age of 18 years. और हमारे बच्चे इंटरेस्टिंगली आपको सुन के बहुत हैरानी होगी कि 8.9 ईयर्स की एवरेज स्कूलिंग करते हैं 18 साल की उम्र तक। और उसमें से जो एक्चुअल लर्निंग इन स्कूल है, जो एक नया पैरामीटर है जो ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स के अंदर इंट्रोड्यूस किया वर्ल्ड बैंक ने 2019 के अंदर, दैट वाज लेज लर्निंग एडजस्टेड ईयर्स इन स्कूल्स। के एक्चुअली अगर आप 10 साल स्कूल जा रहे हैं तो आपकी लर्निंग उन 10 सालों में से कितने सालों में हो रही है। कि दे रियलाइज कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उसमें नंबर ऑफ ईयर्स इन स्कूल इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ ईयर्स इन लर्निंग दैट इज हैपनिंग इन स्कूल। एंड पाकिस्तान में दैट इज 4.9 ईयर्स। सो यू कैन इमेजिन कि हमारा बच्चा 4.9 ईयर्स की एक्चुअल लर्निंग कर रहा है। तो हमारी जो क्वालिटी है एजुकेशन की वो बहुत ज़्यादा लो है। प्राइवेट स्कूल्स के अंदर परसेप्शन है बेटर क्वालिटी की, बट एक्चुअली उनका भी जो क्वालिटी का लेवल है अनफॉर्चुनेटली वो पब्लिक स्कूल से ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। Talha, आई given एम these टॉकिंग अबाउट numbers, मेजॉरिटी स्कूल्स। तो दैट्स व्हाई वी डिसाइडेड कि हम ये एक टीचर्स के लिए भी एक प्लेटफॉर्म लॉन्च करेंगे। तो ये तो बेसिकली कोर करिकुलम की साइड पे है। सो वी आर लॉन्चिंग अ प्लेटफॉर्म इन सम टाइम इन 2021, Teach Smart Pakistan, because any teacher who has got the access to a mobile phone, they should be able to using AI, they should be able to take a diagnostic test जिसमें हम उनके learning gaps जहाँ पे वो खुद वीक हैं उस पर उनको फोकस करा सकें। बिकॉज नाउ वी हैव द होल कंटेंट क्रिएटेड, वी हैव द टेक्नोलॉजी, सो वी कैन लॉन्च द सेम सोल्यूशन यूजिंग लेवरेजिंग द सेम कंटेंट एंड टेक्नोलॉजी, एंड थोड़ी सी डिफरेंस के साथ उसको वी कैन लॉन्च इट फॉर टीचर्स एज वेल। तो ये हमारा बेसिकली करिकुलम की साइड पे है। फिर नॉन करिकुलम की साइड के ऊपर वी आर वर्किंग on financial literacy with State Bank of Pakistan. We developed this game which is a top financial literacy game in the country. POMPAC के नाम से इसके 1,20,000 डाउनलोड्स हो चुके हैं। और अब आई थिंक ये तो पुराने नंबर्स हैं, बट 5 लाख से ज़्यादा बच्चे उनके ऑफलाइन या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर क्लासरूम्स के थ्रू या फिर ऑनलाइन मोबाइल ऐप के थ्रू लर्निंग कंप्लीट कर चुके हैं। इसी तरह वी आर वर्किंग विद बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ऑन बर्ड एंड बीज प्रोग्राम, जो कि इट्स अबाउट टीचिंग क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स थ्रू नेचर।
कि हमारा जो इकोसिस्टम है, हमारे सस्टेनेबिलिटी के बारे में और इस सारी चीज़ों के बारे में उनको, बर्ड्स के बारे में और बीज के बारे में उनको पढ़ाना, उनको बताना कि एक पूरा इकोसिस्टम कैसे काम करता है और एक काम के क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, और इसके थ्रू उनको क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग टीच करना। तो ये हमारी बेसिकली डिफरेंट जो प्रोडक्ट्स हैं और इनिशिएटिव्स हैं, ये उसकी समरी है इन पाकिस्तान। ये हमारा जो ग्रोथ रेट है 984 स्कूल्स का पाकिस्तान में जो जिनके साथ हम काम कर रहे हैं। तो कोविड से पहले ये सिर्फ हम मेन सिटीज़ में थे, बिकॉज हमारी जो ऑन ग्राउंड सपोर्ट थी वो सिर्फ मेन सिटीज़ में थी। लेकिन आफ्टर कोविड अब आप देख सकते हैं कि वी हैव स्कूल्स ऊपर गिलगित बल्तिस्तान में भी स्कूल हैं, कोयटा में भी हैं, सिंध के डिफरेंट शहरों में हैं, पंजाब के डीप हॉलपुर और मुल्तान की साइड के ऊपर भी। तो काफ़ी ज़्यादा कोविड में रिमोट चुके स्कूल्स आए। हमने एक प्रोडक्ट नया लॉन्च किया जो विच वाज ऑनलाइन ओनली प्रोडक्ट, वर्चुअल कैंपस के नाम से, लर्न स्मार्ट क्लासरूम वर्चुअल कैंपस। तो हमारी जो रीच थी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। जो हमारा की सोल्यूशन है ब्लेंडेड लर्निंग का, जो एक्चुअली हमने डेवलप किया था, लॉन्च किया था, व्हेन वी थॉट, हमने सोचा कि हम क्या ऐसी प्रोडक्ट लॉन्च करें, हम क्या मसला हल करने जा रहे हैं पाकिस्तान में। और जो द की प्रॉब्लम एट दैट टाइम वी picked was quality of education, कि हमने किसी तरह क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को इम्प्रूव करना है इन पाकिस्तान। एंड देन फॉर दैट वी नीडेड अ वे कि हम टेक्नोलॉजी को किस तरीके से लेवरेज करें कि एक सोल्यूशन बनाएं जो कि बहुत ज़्यादा स्केलेबल हो, वो लो कॉस्ट भी हो, एक छोटा सा स्कूल भी उसको अफोर्ड कर सके और बड़ा स्कूल भी उसको मॉड्यूलर बेसिस पे ज़्यादा डिप्लॉय कर सके, उसमें पूरा का पूरा क्वालिटी और इंगेजमेंट का मेथड हो, फिर उसमें क्लाउड भी हो। सो पूरा हमने एक सोचा कि क्या हमें करना है, एंड हमने डिफरेंट मॉडल्स को स्टडी किया अराउंड द वर्ल्ड, एंड वी फाउंड के जो मॉडल्स थे जो इंडिविजुअल डिवाइसेस यूज़ कर रहे थे, जैसे वन लैपटॉप पर चाइल्ड का एक इनिशिएटिव था, निग्रो पॉन्टे ने लॉन्च किया था। It failed because countries like Pakistan, they cannot afford to buy individual, even $100 a tablet or devices for Pakistan because there are so many students. So हमने सोचा कैसे हम ऐसा टेक्नोलॉजी बेस्ड सोल्यूशन लॉन्च करें। जस्ट मैं कंप्लीट कर लूँ साइमन, देन यू कैन आस्क ये वाली स्लाइड। कि जैसे हमने सोचा कि हम कैसे एक लैपटॉप, सो वी केम अप विद एन आइडिया कि व्हाई नॉट लेवरेज वन लैपटॉप पर क्लासरूम or one laptop per school, right? So we came up with an offline only version of our product that we basically that you can install on a desktop machine or a laptop machine, and it has the software, it has digital content, it has digital lessons, it has animated videos, it has assessments, it has activities and games, so you don't need internet. So you just need, let's say, and then what you can do, a school can start their, blended learning journey by setting up a single room in their school, which we call as a digital learning center or a learn smart classroom. So they just put a laptop, a projector or TV, then a speaker if they are not using TV, एंड देन सेट ऑफ क्लिकर्स। सो क्लिकर्स क्या होते हैं, ये एक रिमोट कंट्रोल टाइप की डिवाइस होती है, छोटा सा रिमोट कंट्रोल जैसे होता है, और उसमें 5 बटन्स होते हैं। सो ये कनेक्ट होता है RF के थ्रू, एक इसकी रिसीविंग डिवाइस होती है जो लैपटॉप से कनेक्ट हो जाती है, और दिस इज यूज फॉर असेसमेंट्स। सो फॉर एग्जांपल असेसमेंट्स आर ऑलरेडी रेडीमेड, जो कि बनी बनाई होती हैं, और फिर वो नेशनल करिकुलम के लिहाज से और उस टेक्स्ट बुक के लिहाज से, and teacher can project. So when they go, they can play the video, they can pause the video, they can give counterexamples, so it becomes a blended teaching experience. They are writing on the whiteboard, so we are not replacing anything, we are empowering teachers so that जो उनकी delivery है, बजाय इसके कि वो जो boring style है उसमें they get animated lectures, they get activities and games to play in the classrooms, and then to do the assessment, because the key fundamental problem जो education के अंदर है वो ये है कि बच्चे जो हैं वो पढ़ते जाते हैं, हम उनको क्लासरूम्स में पढ़ाते जाते हैं ये जांचे बगैर कि उनको ये समझ आ रही है या नहीं आ रही। तो जैसे एक बेसिक कॉन्सेप्ट है आपको पढ़ाते हैं, फिर उससे एडवांस कॉन्सेप्ट पे लेके जाते हैं और एडवांस कॉन्सेप्ट पे लेके जाते हैं। अगर मुझे कोई बेसिक कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ आया एज अ स्टूडेंट और आप मुझे आगे लेके जाते जा रहे हैं, तो
चंद दिनों के बाद मुझे completely समझ आना बंद हो जाएगा. I will give up. I will mentally drop out of that subject. मैं कहूँगा ये मैथ मेरे लिए नहीं है, ये मुझे बहुत मुश्किल लगता है, बिकॉज मैं पीछे रहता गया और कोई तरीका नहीं था, क्योंकि टीचर ने क्लास में 60 बच्चों को पढ़ाना है, 40 को पढ़ाना है, 30 को पढ़ाना है, कि हर एक को इंडिविजुअल अटेंशन दे. मगर टेक्नोलॉजी को यूज़ करके वी कैन फिगर आउट. तो हमने असेसमेंट जैसे बनाई, टीचर कैन डिस्प्ले 5 क्वेश्चन अबाउट दैट टॉपिक, 10 क्वेश्चंस, they can change the number of questions, student respond through these clickers, और रियल टाइम बेसिस पे टीचर को पता चल जाता है, ग्राफ आ जाता है कि कितने बच्चों ने इस सवाल का क्या जवाब दिया, और किस सवाल में कंफ्यूज हो रहे हैं, किस जवाब में कंफ्यूज हो रहे हैं, उनकी लर्निंग स्किल्स कहाँ हैं, एंड ऑल दैट. Sorry, there would be azan right now, so there would be some background. Maybe we can take a break and, Saima, meanwhile, you can ask some questions or gather some questions. तलहा वैसे इतना डिस्टर्ब नहीं कर रही साउंड बैक वाली? जी, वो अभी स्टार्ट नहीं हुई है. So अच्छा, I think जी. Okay. So starts, I'll let you know. ओके, मैंने जो क्वेश्चन अभी पूछना था आपसे, वो क्वेश्चन ये है कि मे बी फॉर द सेक ऑफ आवर ऑडियंस वी कैन हम बात कर सकते हैं कि ब्लेंडेड लर्निंग होती क्या है, बिकॉज बहुत सारे एजुकेशन से रिलेटेड नहीं होंगे. आपने ब्रीफली अभी एक्सप्लेन किया कि क्लासरूम में जो कुछ हो रहा है उसके साथ वो कैसे कनेक्टेड है. सो देखिए, तो ब्लेंडेड लर्निंग, और मैं कहूँगा कि लर्निंग जो होती है वो हमेशा स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से होती है. तो ब्लेंडेड लर्निंग का जनरली अगर आप उसे डिफाइन करें तो उसका मतलब यह है कि आप ना सिर्फ ट्रेडिशनल तरीके से पढ़ रहे हैं, यानी फेस टू फेस पढ़ रहे हैं, बल्कि देयर इज़ अ ऑनलाइन मीडियम वेयर यू आर यूजिंग टेक्नोलॉजी रिमोटली. ठीक है, तो वो भी आप यूज़ कर रहे हैं. तो इट्स अ ब्लेंड ऑफ बोथ. टेक्नोलॉजी ड्रिवन, यानी आप लर्निंग के पर्सपेक्टिव से अगर देखें, तो मैं एक टीचर से मैं पढ़ रहा हूँ और फिर मैं ऑनलाइन भी मेरे लिए कंटेंट अवेलेबल है. दैट इज़ ब्लेंडेड लर्निंग. अब टीचिंग के पर्सपेक्टिव से आ जाते हैं. जब एक टीचर एक ट्रेडिशनल तरीके से पढ़ा रहा है, दैट इज़ ट्रेडिशनल टीचिंग. बट अगर टीचर इज़ यूजिंग some technology in the classroom to, for example, एक animated video run कर रहा है, या कोई game and activity कर रहा है, या assessment ले रहा है, तो that becomes blended teaching. And because that's not traditional teaching, खाली वो ये नहीं कह रहे कि हम वो total traditional teaching से सिर्फ इस teaching के method पे आ गया. A good teacher would use these tools and really convert this into an amazing learning experience, बिकॉज वो खुद भी वाइट बोर्ड पे लिख रहा होगा, वो खुद भी एग्जाम्पल्स दे रहा होगा, और वो इसको एज रिसोर्सेज, डिजिटल रिसोर्सेज यूज़ करेगा फॉर एन एक्सीलेंट. तो ये बन जाएगी ब्लेंडेड टीचिंग का एक्सपीरियंस. एंड देन दे कैन ऑल्सो असाइन होमवर्क एंड एवरीथिंग, देन इट बिकम्स ब्लेंडेड लर्निंग फॉर स्टूडेंट्स, राइट. सो दीज आर, आई मीन, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, बट आइडिया ये है कि हाउ यू कैन use and leverage technology in addition to your traditional teaching to blend both, whether it's blended teaching or blended learning. I hope I answered the question. I think that's good. I think audience needs to know the terms that we are talking about. So thank you very much about that. जी, तो इसमें जो हमने सिस्टम बनाया, हमने ये किया कि हमने कहा कि अब जब बच्चे असेसमेंट लेते हैं तो हर बच्चे का इंडिविजुअल रिस्पांस ट्रैक हो जाता है सिस्टम के अंदर. ठीक है, तो वो ऐसे ही है जैसे उन बच्चों ने अपनी असेसमेंट ली कंप्यूटर के ऊपर या टैबलेट के ऊपर. तो जो सिस्टम्स जी, जो तो वो सिस्टम्स बता रहे हो उनमें से बहुत सारे मेरा ख्याल है ऑफलाइन लर्निंग वाले, शायद पब्लिक सेक्टर स्कूल्स के अंदर जहां इंटरनेट कनेक्टिविटी इशू है या रिमोट एरियाज में, वहां पर वर्क कर सकता है. जी, प्राइवेट स्कूल्स में भी इशू है. ये इस्लामाबाद के अंदर अगर आप अपनी आज वीडियो बैठ के कोई देख रहे हो, या लाहौर में या कहीं किसी मेन सिटीज में भी, तो देयर इज नो गारंटी कि आपको वो वीडियो या जो है ना वो सीमलेस होगा एक्सपीरियंस. तो आप सोचें कि एक टीचिंग इज अ परफॉर्मिंग आर्ट, राइट, वेयर यू आर परफॉर्मिंग, यू हैव 40 मिनट्स एंड यू वांट कि एक बहुत स्मूथ तरीके से जाए, इसमें कोई ग्लिच ना आए. ठीक है, और अगर आपकी टेक्नोलॉजी, आप वीडियो लोड कर रहे हैं, वीडियो जो है वो इंटरनेट से लोड नहीं हो रही है, या ब्रेक्स आ रहे हैं बीच में, जैसे अभी हम इंटरनेट में शुरू में मैं डिस्कनेक्ट हो गया. अब ऐसा नॉर्मली नहीं होता, बट वी कैन नॉट स्टॉप दैट फ्रॉम हैपनिंग.
सो अगर ऐसा सोल्यूशन हो जो कि लोकली चल रहा हो, दैट वाज द होल आइडिया, दैट इन पाकिस्तान an online solution even in main cities, in schools where you have internet access, because there, let's imagine there are 10 classrooms जहाँ पे सारे teachers access कर रहे हैं, हर एक video load कर रहा है, so you know they need to have a big internet pipe to address. So you need offline solutions in Pakistan, whether it's public schools or private schools. Unfortunately, या तो स्कूल इतने अच्छे हों कि उनके पास इतनी बड़ी बैंडविड्थ की गुंजाइश हो और फिर हर बच्चे के पास टैबलेट हो, कोई इंडिविजुअली एक्सेस कर पा रहा है इंटरनेट को, दैट्स अ सेपरेट यूज केस. तो हमने ये मॉडल बनाया जिसमें सारी लर्निंग उस लैपटॉप पे स्टोर होती है, मगर आफ्टर स्कूल टाइम इफ यू कनेक्ट इंटरनेट तो सारा डाटा जो है वो क्लाउड के ऊपर शिफ्ट हो जाता है, विच मीन्स कि बच्चा घर जाके वहाँ से रिज्यूम कर सकता है जहाँ पे उसने क्लासरूम में छोड़ा था. दे कैन यूज देयर वेब ब्राउजर एट लैपटॉप और डेस्कटॉप मशीन और टैबलेट और मोबाइल फ़ोन, या पेरेंट्स के मोबाइल फ़ोन पे मोबाइल ऐप डाउनलोड करके अपने यूज़र नेम पासवर्ड से लॉग इन करते हैं, एंड दे गेट द पर्सनलाइज्ड लर्निंग. सो मैं अगर एक स्टूडेंट हूँ तो मुझे सिस्टम उन कॉन्सेप्ट पे फोकस करवाएगा जहाँ मैं वीक हूँ, और किसी और को किसी और लर्निंग कॉन्सेप्ट्स पे फोकस करवाएगा बेस्ड ऑन देयर लर्निंग गैप्स. सो दिस इज द पावर ऑफ टेक्नोलॉजी, दैट यूजिंग टेक्नोलॉजी यू कैन प्रोवाइड अ डिफरेंशिएटेड लर्निंग जो कि एक टीचर क्लासरूम में नहीं कर सकता. सो क्लासरूम के पर्सपेक्टिव से वी हैव टू help aid, provide, as I call it, digital scaffolding, right? तो डिजिटल स्कैफोल्डिंग प्रोवाइड कर रहे होते हैं हम उसको थ्रू दिस सिस्टम इन द क्लासरूम, वेयर टीचर इज यूजिंग दिस कंटेंट एंड देन इट वर्क्स विदाउट इंटरनेट. और इसी मॉडल पे फिर आप अगर एक से ज़्यादा क्लासरूम में लगाना चाहते हैं आप, क्योंकि वो क्लासरूम उसकी एक फिजिकल लिमिट है कि यू कैन यूज़ दैट फॉर बिटवीन 35 to 40 पीरियड्स इन अ वीक, ठीक है, वो एक कमरा जो आपका है. तो अगर आपके ज़्यादा बच्चे हैं और आपने ज़्यादा क्लासेस रोटेट करनी है तो यू कैन देन क्रिएट सब्जेक्ट वाइज, बट स्टिल इट्स वेरी चीप. Most 90% of the school, they didn't get hardware from us. They only got clickers from us as part of the solution. They bought second hand hardware, ठीक है, चूंकि अब एक सेकेंड हैंड प्रोजेक्टर जो है वो 22,000 रुपए में मिल जाता है, जबकि एक नए प्रोजेक्टर की कॉस्ट, अच्छे प्रोजेक्टर की कॉस्ट इज अबाउट 90,000 प्लस और 100,000 पाकिस्तानी रुपीज़. इसी तरह जो एक सेकेंड हैंड कंप्यूटर है या लैपटॉप है वो बहुत सस्ता मिल जाता है. तो स्कूल्स जो हैं अब वो ये खरीद रहे हैं सेकेंड हैंड हार्डवेयर, एंड देन दे डिप्लॉय आवर सोल्यूशन इन, दे ईदर क्रिएट वन क्लास. तो पहले एक साल ज़्यादातर स्कूल ने एक एक कमरा बनाया, मगर दूसरे साल में जब हम एंटर हुए तो स्कूल ने डिमांड करना शुरू कर दिया कि अब हमें पूरे स्कूल में हर क्लासरूम्स में ये चाहिए. तो जैसे सवात में एक नेशनल हिरा नेशनल एजुकेशन फाउंडेशन है, हिरा नेशनल एजुकेशन फाउंडेशन स्कूल्स, उनके स्कूल ने ऑप्ट किया कि हमारे क्लास में ये सवात में लगाएंगे, और वी क्रिएटेड अस देन अ सर्वर मॉडल फॉर दैट. सो आई मीन इट्स अ वेरी फ्लेक्सिबल मॉडल वेयर क्लासरूम में भी है और सिंक्रोनाइज हो जाता है, फिर बच्चा घर पे भी लर्न कर सकता है, फिर डैशबोर्ड्स रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं, सो प्रिंसिपल बैठ के देख सकता है कि क्लासरूम में क्या हो रहा है, एक्चुअल लर्निंग क्या हो रही है, लर्निंग गैप कौन सी स्किल्स के अंदर हैं. So, it's not no more about के just a percentage score. You exactly get to know कि बच्चे या classes वो किन areas में struggle कर रहे हैं, कौन सी उनके learning हैं जो gaps हैं जिनको हमने fix करना है. So this is the system that we use. So आपके questions से कुछ इस slide के start पे, so if you want to ask you can. नहीं, मेरा ख्याल है we can move ahead because some of the startups so, I mean, quickly, have questions. जी, तो आई विल क्विकली नाउ मूव बिकॉज मैंने जो सोल्यूशन है वो समझा दिया. सो वी सॉ ह्यूज ग्रोथ. अब तक हमारे प्लेटफॉर्म में ये सिर्फ पिछले अप्रैल 19 से जून 20th की है, अब तक हमारे प्लेटफॉर्म पे 25 मिलियन क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो चुके हैं अक्रॉस 3,000 स्किल्स. सो वी हैव अ लॉट ऑफ डाटा. वी नो कि बच्चे जो हैं डिफरेंट ग्रेड्स में, 6th ग्रेड के बच्चों की ये वाली स्किल्स जो हैं वो अक्रॉस पाकिस्तान या डिफरेंट रीजन्स में वीक हैं. और नाउ वी आर इंटरलिंकिंग द स्किल्स इन यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एंड वी आर क्रिएटिंग नॉलेज ग्राफ्स टू इंटरलिंक द स्किल्स बिटवीन ग्रेड्स. चूँकि हो सकता है कि बच्चे को अगर हम कहीं 9th ग्रेड में कि मेट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन में हमने आइडेंटिफाई किया कि इशू है, दिस इज द असेसमेंट, दिस इज द वीडियो, गो थ्रू दैट, और वो बच्चा उस वीडियो को भी देखे और फिर दोबारा असेसमेंट ले, तो फिर
फिर भी वो स्टक है या वो उसे पास नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब ये है कि उस ग्रेड में प्री रिक्विजिट कॉन्सेप्ट्स हैं या पिछले ग्रेड के प्री रिक्विजिट कॉन्सेप्ट्स हैं। मसलन अगर उसको मल्टीप्लिकेशन ही नहीं आती, ठीक है, विच इज अ ग्रेड 6 में भी जूनियर ग्रेड का कॉन्सेप्ट है, तो वो कैसे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस कर पाएगा? अगर उसको माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस का नहीं पता, तो वो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस भी सही नहीं कर पाएगा। So now using with AI, we are building an artificial intelligence platform for students, which will personalize the learning and provide them with personalized tutoring. ठीक है, और ये हमारी जो कंटेंट लाइब्रेरी है, ये उसकी कुछ इंट्रोडक्शन है कि मैथ, इंग्लिश और साइंस आर द की सब्जेक्ट्स जिन पे हमने फोकस किया हुआ। हमारी 2800 प्लस एनिमेटेड वीडियोस हैं, 600 गेम्स एंड एक्टिविटीज़ हैं। ये सारी एजुकेशनल गेम्स एंड एक्टिविटीज़ की हम बात करें विच आर लिंक्ड विद करिकुलम। वी हैव अ क्वेश्चन बैंक ऑफ अबाउट 40,000 plus questions, and then we have students can use web browser, they can download app on Apple Store or Google Play Store. We are also broadcasting some of the content on Teleschool for grade 6, 7th and 8th, and then some of the content is available on YouTube. And we also distribute some through Facebook. So these are the distribution channels. Like I said before, since we realize कि ये जो सारा कुछ हम बना रहे हैं ये सब इंटरलिंक्ड है। अगर एक टीचर दो बच्चों को पढ़ा रहा है और दोनों बच्चे जो हैं वो दो क्लासेस को पढ़ा रहा है, दोनों क्लासेस जो हैं वो लेट्स से अलजेब्रा में के एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में वीक दिखा रहा है डाटा, तो इसका मतलब ये है कि शायद उस टीचर को रीइंफोर्स करने की ज़रूरत है। शायद वो टीचर तो बजाय इसके कि हम डायरेक्टली उसको जेनेरिक टीचर को पैडागोजी की ट्रेनिंग दे दें, विच इज़ टिपिकल थिंग इन पाकिस्तान की तकरीबन हमारी 90% ट्रेनिंग जो होती है पैडागोजी पे होती है। हम टीचर्स को सिर्फ पढ़ाने के तरीके पे फोकस करते हैं, मगर अगर उसको सब्जेक्ट ही नहीं आता, सब्जेक्ट नॉलेज नहीं है या कंटेंट नॉलेज नहीं है, तो पैडागोजी वो गैप फिल नहीं कर सकती। तो इसीलिए ये डाटा हमें हेल्प कर सकता है कि ना सिर्फ हम स्टूडेंट्स को इम्प्रूव करें, मगर हम टीचर्स को भी इम्प्रूव कर सकें और उनको एक प्लेटफॉर्म दे सकें। तो ऑल ऑफ दिस इज इंटीग्रेटेड, वेदर यू आर यूजिंग इट इन क्लासरूम or whether you are using it online, directly selling it to students, or you are using it or providing something for teachers. ये हमारी केस स्टडी जो मैंने बताई थी 75 पब्लिक स्कूल जैज स्मार्ट स्कूल का प्रोजेक्ट था। जैज फंडेड दैट, इट वाज अ वेरी सक्सेसफुल प्रोजेक्ट। इट वॉन 4 इंटरनेशनल अवार्ड्स। जैज इसको डिफरेंट दुनिया में एग्जीबिशंस पे लेके गया एंड इट वॉन 4 डिफरेंट इंटरनेशनल अवार्ड्स। और इसमें लर्निंग इम्प्रूवमेंट बहुत हुई। बाय अब 38,000 बच्चों ने इससे फ़ायदा उठाया और हर स्कूल में हमने एक डिजिटल लर्निंग सेंटर बनाया। 1000 से ज़्यादा टीचर्स इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करते रहे। फिर ना सिर्फ टीचर्स बल्कि पूरे प्रिंसिपल्स को हमने ट्रेन किया। हमने एरिया एजुकेशन ऑफिसर्स को ट्रेन किया ऑन हाउ दे कैन यूज़ डैशबोर्ड्स टू मॉनिटर द क्लासरूम्स ऑन देयर फोन्स। एंड देन इस सिस्टम पे तकरीबन 5 लाख असेसमेंट हो चुकी हैं। 5-6 मिलियन क्वेश्चंस जो हैं इस प्रोग्राम के अंडर बच्चों ने लिए। This was launched initially for 9th and 10th math and English, but then we also added some subjects for 6th, 7th and 8th. So this is a very successful example of a blended, and I think this is the only example of a large scale blended learning implementation in Pakistan in public schools. ये हमारे कुछ एग्जांपल्स हैं कि हम कंटेंट कैसे बनाते हैं, किस तरह का डिजिटल कंटेंट है। मोस्ट ऑफ इट इज़ डिजिटल कंटेंट, एनिमेटेड कंटेंट। ये मैथ की एग्जांपल्स हैं, ये साइंस की एग्जांपल हैं, और फिर ये हमारा जो असेसमेंट जो ऐप है उसके ऊपर फॉर एग्जांपल हमारे असेसमेंट क्वेश्चंस कैसे नज़र आते हैं, कैसे आप ले सकते हैं। फिर अगर आप स्टोरी गेम्स की एग्जांपल देखें जो हमने डिफरेंट तरह की गेम्स बनाई हैं, तो ये उनकी एग्जांपल्स हैं कि कुछ सब्जेक्ट स्पेसिफिक गेम्स हैं, जैसे आपको नीचे नज़र आ रहा है हाउ टू टीचिंग देम स्टूडेंट्स स्किल्स सेट्स के बारे में, तो उसके लिए एक सेट्स की गेम बना दी हमने। इसी तरह ज्योमेट्री के लिए हमने गेम बनाई है जो लाइन से स्टार्ट होती है और हेक्सागोन तक और कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री के तमाम ज्योमेट्री उस एक गेम से टीच होती है।
तो इस तरह की गेम्स भी अवेलेबल हैं विच कैन बी प्लेड इंडिविजुअली बाय स्टूडेंट्स ऑनलाइन और दे कैन बी यूज्ड इन द क्लासरूम इन फॉर्म ऑफ अ ग्रुप सेटिंग वेयर यू डिवाइड द क्लास इनटू 2 ग्रुप्स एंड देन दे compete with each other. तो फिर तलहा हमारे ये गेम्स, डैशबोर्ड्स, तो ये गेम्स स्कूल्स खरीद रहे हैं तलहा, या इंडिविजुअल पेरेंट्स भी अपने बच्चों के लिए बाय कर रहे हैं जी डायरेक्टली जो थ्रू आउट द सोल्यूशन चिल्ड्रन? है ना, जी जो सोल्यूशन है वो अभी तो स्कूल्स ले रहे हैं, और जो स्कूल को हम ले रहे हैं, और बच्चे भी, अभी हमने B2C जस्ट लॉन्च किया, मैंने आपको बताया कि पहले हम फ्री दे रहे थे। ये जो पूरा कंटेंट है जो यहाँ पे आपको दिखा है 2800 वीडियोस, गेम्स, एक्टिविटीज, ये सारा अवेलेबल होता है स्कूल को, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी। ऑफलाइन लैपटॉप पे इंस्टॉल हो जाता है, ऑनलाइन भी अवेलेबल होता है। तो दे गेट अ होल बंडल वेयर डिजिटल लेसन्स आर ऑलरेडी क्रिएटेड। उनके टीचर्स को कुछ नहीं करना, दे जस्ट हैव टू यूज इन। इवन हमारी टीम्स उनके यूजर अकाउंट्स भी बनाती हैं, उनको सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। जो हमारा ब्लेंडेड लर्निंग का मॉडल है उसके अंदर हमारी टीम जो है वो विजिट करती है इन स्कूल, और हर महीने विजिट करती है। वो जाते हैं, नए टीचर्स को ट्रेन करते हैं, वो ये देखते हैं कि टीचर सोल्यूशन कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। हम व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं स्कूल्स के साथ, और टीचर जब इस्तेमाल कर रहा होता है, उसको कोई भी इशू आता है तो उसको वेट नहीं करना पड़ता, वो सिंपली व्हाट्सएप पे हमसे रब्ता करता है और हमारी टीम उसका मसला हल करती है। अगर हमें विजिट करने की ज़रूरत होती है तो हम स्कूल को विजिट करते हैं, और वैसे ज़रूरत ना भी हो तो हम मंथली 1 विजिट पर स्कूल, जो ब्लेंडेड लर्निंग का हमारा सोल्यूशन यूज़ कर रहा है, हम करते हैं। जिसमें जैसे मैंने बताया, नए टीचर्स को ट्रेन करते हैं, हम क्लासरूम ऑब्जर्वेशन करते हैं कि वो कैसे पढ़ा रहे हैं, कैसे इस सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं। So it's a very comprehensive solution where not only it's using hardware, it's using software, it's using digital content, it's using initial teacher training, but then that's the start of a journey for a teacher to use blended learning. And then actual journey is when they are using the solution in class. So वहाँ पे हम उनको पूरी सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं ताकि हम उनको उनका बिहेवियर चेंज कर सकें। एक सवाल जो पूछा था वो ये कि हम जैसे एक सवाल की लिस्ट थी, उसमें से एक शायद सवाल था मेरे ख्याल में जो मैंने देखा था, वो ये था कि हम कैसे चेंज कर सकते हैं टीचर्स को, और कैसे उनको टेक्नोलॉजी यूज़ करने पे उनको आमादा कर सकते हैं। उसमें जो की चीज़ ये है कि पहली तो बात ये कि अगर मेरे ख्याल में हम उनको मोटिवेट करें, बताएं कि फ्यूचर टीचिंग दुनिया कहाँ जा रही है, तो मोस्टली जो लोग हैं टीचर्स हैं, दे बिलीव इन के हाँ दे कैन नॉट कंटिन्यू ऑन टीचिंग इन ट्रेडिशनल मैनर्स, और अगर वो इस तरह टीच करते रहेंगे तो फिर दे वुड बी लेफ्ट बिहाइंड। और अच्छे टीचर्स जो कि अडॉप्ट कर रहे हैं टेक्नोलॉजी, तो दैट्स फर्स्ट पॉइंट कि उनको मेंटली कन्विंस किया जाए इस चीज़ के ऊपर कि ये ज़रूरी है। दूसरी चीज़ ये है बिहेवियर चेंज, कि मैं एक टीचर हूँ और मैं सारी ज़िंदगी या मैं पिछले 10 साल से एक मैनुअल तरीके से पढ़ा रहा हूँ। अब आपने मुझे टेक्नोलॉजी दे दी, मैं कैसे चेंज करूँ अपने बिहेवियर को? तो बिहेवियर चेंज सबसे मुश्किल काम है, और ये ना सिर्फ टीचर्स के लिए ट्रू है, बट ये हम जिंदगी में सबके लिए ट्रू है। हम कॉर्पोरेट्स में अगर काम करें, कंपनीज में बात करें, बिहेवियर चेंज करना इज़ अ वेरी डिफिकल्ट एंड चैलेंजिंग थिंग। बट आई थिंक उसके लिए आपको कंसिस्टेंट एफर्ट करनी पड़ती है, आपको सपोर्ट देनी पड़ती है, आपको देखना पड़ता है कि वो कहाँ स्टक हो रहे हैं, आपको उनको इनकरेज करना पड़ता है। मसलन इस जैज स्मार्ट स्कूल के प्रोग्राम में वी केम अप विद एन इंकरेजमेंट प्रोग्राम फॉर टीचर्स, जहाँ पे हम हर क्वार्टर में टीचर ऑफ द मंथ अवार्ड दे रहे थे कि जो टीचर्स एक्टिवली यूज कर रहे थे प्लेटफॉर्म को, हम बुलाते थे एरिया एजुकेशन ऑफिसर, एक छोटी सेरेमनी विद 40-50 पीपल where we were recognizing that they are putting in effort, they are using the platform, they were getting teacher of the month award. So that encouraged more teachers to start participating. And then so it has to be both stick and carrot. So stick is कि जब आप पुश कर सके, मतलब प्रिंसिपल कह सके कि ये आप क्यों यूज नहीं कर रहे। अभी तो टीचर उनको ये नहीं पता, सिर्फ उनको ये पता होता है प्रिंसिपल्स को क्लासरूम्स में क्लासेस हो रही हैं या हमारे जो टर्म के एग्जाम थे उसके रिजल्ट्स यहाँ आए हैं, मगर एक्चुअल लर्निंग गैप्स क्या हैं, क्या बच्चे पढ़ रहे हैं, वो कहाँ स्ट्रगल कर रहे हैं, कौन से टीचर्स की कौन सा एरिया वीक है, उनके पास ये इंफॉर्मेशन नहीं होती स्कूल्स में। सो अगर उनको ये एक मोबाइल डैशबोर्ड के ऊपर मिल जाए जो हमने दी अपने प्रिंसिपल्स को, तो दे कैन मॉनिटर, दे कैन देन गो इन एवरी क्लास व्हाट दे आर डूइंग, सी their learning gaps, they can then go to and see every student what they are doing. So it's a huge amount of data that we are collecting that is available, that then
गेट यूज्ड कि वो एरिया एजुकेशन ऑफिसर या एक स्कूल का जो नेटवर्क ओनर है वो कहेगा कि ये क्यों सिस्टम इस्तेमाल नहीं हो रहा, और फिर प्रिंसिपल नीचे पुश करेगा, एंड देन इनकरेजमेंट मैकेनिज्म्स भी हमने रखे, और एंड देन आई बिलीव कि पेरेंट्स के इन्वॉल्व करने से भी ज़्यादा हेल्प हो सकती है. तो आई थिंक देयर आर डिफरेंट वेज वेयर यू कैन मेक देम अडॉप्ट अ सोल्यूशन. Talha, I think we are running out of time. We have two more slides that you were really keen on showing. We'll quickly go through these, and then I have a few questions, and then my panel has some questions also. जी, sure. So I would briefly show you this slide, market size for K-12, कि हमारे जो 50 मिलियन बच्चे हैं, roughly 49 million, उनमें कितने बच्चे जो हैं वो प्राइमरी में. तो you can see 27% kids are in pre-primary, then 45%, 46% are in primary schools, then 15% are in middle schools, and then 7% are in high school, and only 3.8% students are in 1.8 million every year in higher secondary. तो ये चीज़ फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जहन में रखनी चाहिए, ख़ासतौर पे जो लोग एटेक स्टार्टअप्स कर रहे हैं या इसके बारे में सोच रहे हैं कि उन्होंने किस सेगमेंट पे फोकस करना है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई योर कस्टमर्स एंड कि आप किन कस्टमर्स के लिए क्या सोल्यूशन बनाना चाहते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आपके कस्टमर्स कौन हैं, उनका पेन पॉइंट क्या है जो आप एड्रेस करने जा रहे हैं थ्रू योर प्रोडक्ट. सो आई थिंक मोस्ट ऑफ दीज थिंग्स यू ऑलरेडी नो, बट द की वो डायलेमा जो होता है हमारा वो ये होता है कि हम जब भी कोई आइडिया सोचते हैं तो हम इतने सेल्फ ऑब्सेस्ड हो जाते हैं उसके अंदर, या हम या हमारे आसपास के चंद लोग जो उस आइडिया के बारे में एक्साइटेड होते हैं कि वी फेल टू वैलिडेट कि जो जिनके लिए हम ये प्रोडक्ट बना रहे हैं उनको क्या चीज़ चाहिए, क्या उनको ये प्रोडक्ट चाहिए या नहीं चाहिए. तो वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज प्रोडक्ट वैलिडेशन, कि आप ये देखें कि जो आपने प्रोडक्ट बनाई है, जब जैसे हमने स्टार्ट किया, हमने 9th ग्रेड मैथ के सब्जेक्ट से स्टार्ट किया, उसके स्कूल में पायलट किए. अब हमारे पास बहुत सारा कंटेंट है जो हमने 3-4 साल में बनाया है, डिजिटल कंटेंट. जब हमने टेक्नोलॉजी पहली दफ़ा लॉन्च की तो बड़ी सिंपल टेक्नोलॉजी थी, उसमें इतने फीचर्स नहीं थे, बट इट वाज इनफ for to test a minimal viable product. So you have to get the reaction, what is working for your clients, whether it's the right product. आप किस product में, मसलन अगर आप कहेंगे generic कि हमारी target market 49 million students है, हम grade 1 से 10 तक सब के लिए product बना रहे हैं, then you may be missing out. आपकी product शायद align ना बने. लेकिन फॉर एग्जांपल अगर आप कहें हमने सिर्फ प्री प्राइमरी पे फोकस करना है और प्री प्राइमरी में ये चैलेंजेस हैं, स्कूल में ये इश्यूज हैं, एंड दिस इज हाउ आवर प्रोडक्ट इज गोइंग टू फिक्स XYZ इशू, एंड दीज आर द एंड यूजर्स के वो पेरेंट्स खरीदेंगे या स्कूल्स खरीदेंगे हमसे, तो देन इट बिकम्स मोर स्पेसिफिक. इसी तरह हायर सेकेंडरी की साइड के ऊपर देयर इज अ डिफरेंट सेट ऑफ नीड्स कि आपको उनके एग्जाम की प्रेपरेशन और उसकी तरफ फोकस करना है. सो कई मोड्स हैं जब प्रोडक्ट के बारे में हम सोचते हैं, और उसमें क्या हम वो प्रोडक्ट लर्नर्स टीचर्स के लिए बना रहे हैं, स्कूल्स के लिए बना रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, या डायरेक्टली स्टूडेंट्स के लिए बना रहे हैं, पेरेंट्स को के लिए बना रहे हैं, यानी B2B या B2C, दो कैटेगरीज. फिर विद इन दोज कैटेगरीज क्या हम वो प्रोडक्ट सेल्फ लर्निंग के लिए बना रहे हैं, क्या वो प्रोडक्ट हम सिर्फ टीचिंग सपोर्ट देने के लिए बना रहे हैं, क्या वो प्रोडक्ट हम एग्जाम्स में अच्छे स्कोर लेने के लिए बना रहे हैं, क्या वो प्रोडक्ट हम, तो ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो एग्जैक्टली व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव एंड पर्पस ऑफ योर प्रोडक्ट, उसका कस्टमर्स क्या हैं, स्टफ लाइक दैट. सो दिस इज द आइडिया दैट आई वांटेड टू गिव यू, कि अगर कोई सोल्यूशन बना रहा है तो दे हैव टू सी कि वो किसके लिए वो प्रोडक्ट बना रहा है. दूसरी चीज जो मैं कहना चाहता हूँ, is a great thing, जहां बहुत हमारे स्टार्टअप स्ट्रगल करते हैं because of lack of data and research in so many sectors. कि जैसे मैं भी देखी आपने ये वाला extrapolate किया हुआ है from 2016 2017 वाले डेटा को. So I think the market sizing data will be very beneficial for them. Also the fact कि आप जो segmentation की बात कर रहे हो कि you don't need to be everywhere. Choose an area where you want to specialize, start small,
and then maybe move up. So what about this one, Talha? Ji, Education this digital is divide. like the split of that 50 million students. Okay. ठीक है, तो अब हम बात तो करते हैं एडटेक की, बात कर रहे हैं हम यूजिंग टेक्नोलॉजी ऑनलाइन, लेकिन अभी आप कोविड के अंदर भी देखेंगे तो जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हमारे एस्टिमेट के मुताबिक सिर्फ 1 मिलियन स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पास जो डिजिटली इनेबल्ड हैं, यानी जिनके पास अपनी कोई डिवाइसेस हैं घरों पे। उन बच्चों के पास या कोई लैपटॉप है या कोई क्रोमबुक है या कोई टैबलेट है या कोई मोबाइल फ़ोन है। सो ऐसे बच्चे सिर्फ 1 मिलियन हैं, और जो 49 मिलियन बच्चे हैं उनके पास डिवाइसेस की और इंटरनेट की एक्सेस नहीं है। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो नज़र आ रहे हैं, ये जो आपको एक इन्वर्टेड ब्लैक ट्रायंगल दिख रहा है, जिसको हम कह रहे हैं ब्लैक ट्रायंगल जो है, ये डिजिटल एक्सेस थ्रू पेरेंट्स, कि पेरेंट के पास घर में एक स्मार्टफोन है और दे कैन लेंड इट टू, या वो बच्चों को दे सकते हैं कुछ देर के लिए उनकी पढ़ाई के लिए, जो कि कोविड में हुआ कि पेरेंट्स के फ़ोन को यूज़ करके बहुत सारे बच्चे जिनके पास अपनी कोई डिवाइस नहीं थी, उन्होंने कुछ ऑनलाइन क्लासेस ली जो सिंक्रोनस लर्निंग थी, या उन्होंने सिंक्रोनस लर्निंग ली, यानी जिसमें टीचर का ऑनलाइन होना ज़रूरी नहीं है, वो अपने हिसाब से किसी भी टाइम बैठ के वो रिसोर्सेज होमवर्क कर सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, असेसमेंट ले सकते हैं। तो ये सिर्फ 24 मिलियन हमारा ख्याल है कि पेरेंट्स के पास जो कि लेटेंट एक्सेस जिसे हम कहते हैं। तो दिस इज़ द की थिंग कि हम जो सोल्यूशन बना रहे हैं एक्चुअली उसमें जो की चीज़ जो कोविड ने हमें सिखाई वो ये थी कि इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ द की। इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा जो है, जिसमें हमारे बच्चों के पास डिवाइसेस ही नहीं हैं, उनके पास इंटरनेट एक्सेस ही नहीं है, और एक स्मॉल माइनॉरिटी है जिसके पास हमारे पास डिजिटल डिवाइसेस और एक्सेस है। इसीलिए गवर्नमेंट ने इस तरह के इनिशिएटिव लिया, जैसे पब्लिक स्कूल्स की साइड के ऊपर दे वेंट टूवर्ड्स टीवी, कि हम टीवी पे ब्रॉडकास्ट कर देते हैं ताकि मैक्सिमम लोगों के घर में टीवी है तो वो देख लेंगे। दैट वाज द रीजन बिहाइंड इट, बट एक्चुअल दिस इज अ चैलेंज कि वी हैव टू सॉल्व दिस चैलेंज, एंड दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू एज वेल। वी आर ट्राइंग टू लॉन्च वन एजुकेशन डिवाइस पर फैमिली, जो कि किस्तों पे अवेलेबल हो, एक टैबलेट जो पूरे घर में बच्चे इस्तेमाल कर सकें, 2-3 बच्चे। पाकिस्तान हैज़ एवरेज ऑफ 2.77 किड्स पर फैमिली, तो उसमें दे कैन यूज़ द सिंगल टैबलेट एंड देन वो किस्तों पे उसके पैसे देते रहें, और उसमें उनको टैबलेट में हर चीज़ मिल जाए, जिसमें उनको डिजिटल कंटेंट भी मिले, इंटरनेट भी मिल जाए उनको, दे जस्ट यूज़ इट फॉर एजुकेशनल पर्पसेस. So this is what we are also working on, to come up with such solution that we can launch in Pakistan, because we realize कि अगर हम नहीं करेंगे तो जो प्रोडक्ट है वो इसकी एक जो क्लाइंट बेस है खास हद तक से ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। तो ये चीज़ें मेरे ख्याल में जो एडटेक में स्टार्टअप कर रहे हैं लोग या आइडियाज़ लॉन्च करना चाहते हैं, उनको फोकस करना है कि उन्होंने किन लोगों पे फोकस करना है, उसकी मार्केट का एग्जैक्ट साइज़ क्या है, वो डिजिटली इनेबल हैं या नहीं हैं, हाउ। तो ये अगर नहीं सोचेंगे तो फिर हम सोल्यूशन बना लेंगे और कहेंगे कि इट्स नॉट वर्किंग। और आपने देखा होगा कि कोविड के केस में जो खासतौर पे पब्लिक स्कूल के बच्चे हैं, उनमें दे कुडंट लर्न अदर देन मे बी यूजिंग देयर पेरेंट्स फोन टू एक्सेस एप्स लाइक नॉलेज प्लेटफॉर्म्स, या जो भी पाकिस्तान के प्लेयर्स हैं इंटरनेशनल, कोई खान अकेडमी टाइप के, जो उन्होंने एक्सेस की हों, मगर उसके अलावा दे couldn't, most of them couldn't access or continue their education in a situation like COVID, and it's going to continue unfortunately. COVID एक साल, अगले एक साल ये चैलेंज हमारा रहेगा जब तक ज़्यादातर लोग वैक्सीनेटेड नहीं हो जाएंगे। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि अगले 2021 यानी इस साल भी एक चैलेंज जारी रहेगा, और towards the end of year situation will get better where we will start seeing the same consistency education schedule में, schools के schedule में, जो कि पहले होती थी, मगर उससे पहले शायद इसी तरह schools खुलें बंद हों। और so we have to come up with educational products and services and ideas जो कि इस reality के अंदर काम कर सकें। So with that I will conclude. Talha, you can close the slide share if you want. I have a question related to this
last slide of yours, but I'll ask it generally, that आप बात कर रहे हो 26.8 मिलियन बच्चों के जो पब्लिक सेक्टर में स्कूलों में जाते हैं और वो भी डिजिटली डिप्राइव्ड हैं, और फिर आपने एक पोर्शन बच्चों की दिखाई जो कि एजुकेशन सिस्टम का पार्ट ही नहीं है. डू यू थिंक एजुकेशन सिस्टम, अगर ऑनलाइन या डिजिटली हम एजुकेशन सिस्टम को प्रमोट करते हैं या प्रोडक्ट्स बनाते हैं, do you think these people who have no access to education or are out of the education system can, because of this tool, become part of that education system? मैं बिल्कुल नीचे वाले आपके पिरामिड के टियर की बात कर रही. देखिए, अगर जो स्कूल से बाहर हैं उनके लिए तो बिल्कुल अलग चैलेंज है. जो अगर हम कहें कि हमने 22 मिलियन स्टूडेंट्स हु आर आउट ऑफ स्कूल, उनको कैसे एक्सेस करना है, ठीक है, चूंकि दे आर नॉट पार्ट ऑफ एनी इंस्टीट्यूशन, दे आर नॉट गोइंग टू एनी स्कूल. वो डिफरेंट ग्रेड्स में है, कोई 17 साल का है, कोई 14 साल का है, कोई 13 साल का है, किसी ने 3 ग्रेड्स पढ़े हुए हैं, किसी ने 4 ग्रेड्स पढ़े हुए हैं. सो दे आर डिफरेंट काइंड ऑफ चैलेंजेस के जी उनको टेस्ट करें पहले, फिर उनको उनके पास कोई डिवाइस होनी चाहिए, वो कहाँ जाके पढ़ें, कैसे पढ़ें. सो आई थिंक जो बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं उनके लिए आपको एक डिफरेंट तरह के सॉल्यूशंस की ज़रूरत है, ठीक है. But Talha, what about जो public sector के challenges हैं? That is something that worries me a lot personally, where हम जहाँ हम एक ही मेयार की education अपने मुल्क में नहीं provide कर सके, private and public स्कूलों की divide बहुत huge है. So ये जो digital solutions हैं, इसमें क्या आपको constraint या resistance feel हुई public sector से, other than डिजिटल डिवाइसेस या इंटरनेट कनेक्टिविटी? आई थिंक इंटरनेट कनेक्टिविटी को तो एक हद तक आपके सॉल्यूशंस ने सॉल्व किया, लेकिन इस फैकल्टी और उसका टीचर्स का उसके साथ कंफर्टेबल होना, कोई गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स, डू यू थिंक ये हमारे पब्लिक सेक्टर में इसके इनरोड्स बना सकते हैं डिजिटल एजुकेशन के? बिल्कुल जी. आई थिंक मोर लेस with the exception of very few teachers, we got overwhelming response from teachers who adopted the technology. जैसे जैज स्मार्ट स्कूल के प्रोग्राम के अंदर जो हमने किया पब्लिक स्कूल में, इसमें एवरेज एज ऑफ टीचर्स वाज 40 years, ठीक है. और उनमें से बहुत सारे टीचर्स ने आज से पहले टेक्नोलॉजी भी इस्तेमाल नहीं की थी. सो इट वाज अ बिग ट्रांजिशन फॉर देम. बट आई थिंक लुकिंग एट द वे वी क्रिएटेड सिस्टम, और जिस तरह से हमने उनको शुरू में ट्रेन किया, बहुत छोटी सी ट्रेनिंग थी, 1 day ट्रेनिंग, जिसके बाद से ऐसे टीचर्स जो कि ज़रा कंफर्टेबल नहीं थे, वो फिर हमने रिवर्स मेंटरिंग की अप्रोच यूज़ की, और उसमें कुछ 2 बच्चों को भी साथ ट्रेन कर दिया क्लासरूम में, जो कि जैसे टीचर असिस्टेंट्स होते हैं, वो बच्चे जो हैं वो आके खुद ही उनकी केबल लगाते थे. सो अलमारी से लैपटॉप निकाला और उसके साथ ऑन किया, प्रोजेक्टर के साथ लगाया, क्लिकर्स डिस्ट्रीब्यूट किए. सो इट्स हाउ यू इम्प्लीमेंट दिस. So we learned so many tricks and tips during these years कि जी फॉन्ट साइज क्या होना चाहिए प्रोजेक्टर पे, जो पीछे क्लास में बच्चा बैठा है उसको क्या नजर आना चाहिए, किस तरह के कलर्स आपने यूज करने हैं, किस तरह आपने बच्चों को एंगेज करना है. सो देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट यू हैव टू मेक श्योर एंड यू हैव टू मेक इट ईजियर. फॉर एग्जांपल, अगर आप इम्प्लीमेंट करें यही वाला सोल्यूशन और आप कहें कि लैपटॉप पड़ा है प्रिंसिपल के ऑफिस में, so no teacher is going to go to principal's office and pick the laptop and take the pen. So that's why we created हमने best practice guide बनाई. हमने कहा जी आप ये एक छोटा सा यहाँ पे कैबिनेट बनाए क्लासरूम में, इसी में लैपटॉप पड़ा होगा, इसी में क्लिकर पड़ा होगा, आपका प्रोजेक्टर माउंट हुआ होगा. सो यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग, आपका यूपीएस उससे कनेक्टेड है. सो ऑल यू नीड टू कम एंड जस्ट स्पेंड 2 minutes to put it together and you start using it. And then you don't have to worry एक नॉर्मल टीचर के लिए कि मैं अब इसके ऊपर कंटेंट कैसे बनाऊं, वीडियोस कैसे ढूंढूं, मैं असेसमेंट्स कैसे ढूंढूं. सो ऑल ऑफ दैट वी सॉट दैट इफ वी कैन make it easier for them, they can start using it. So I think we got a very good response from public schools. जहाँ पे भी हमने इवन पहले पायलट किए या ये जो बड़ा हमारा प्रोजेक्ट था या स्मार्ट स्कूल्स का, they were excited, they used it, and बच्चे बहुत engage हुए. तो I think it's a perfect model where you can with minimal investment in hardware. For example, इस स्कूल हमने एक स्कूल में एक सेंटर से स्टार्ट किया था. So for example, अगर आप कहें कि ग्रेड
9th और 10th के लिए आप एक सेंटर बना दें, इस तरह का एक कमरा बना दें, और 6 8 का एक और बना दें. So this is how you can start things. I think we have to first start using the systems. जैसे हमारा मॉडल था, हम स्कूल्स को, इवन प्राइवेट स्कूल्स को ये कहते थे कि आप ये नहीं, आप इस चीज़ की परेशानी ना लें कि आपने सारे स्कूल में ये लगाना है. आप पहले एक कमरे से स्टार्ट करें. जब आप उस कमरे को 40 दफ़ा यूटिलाइज करना शुरू कर देंगे इन अ वीक, देन यू थिंक अबाउट सेटिंग अप अनदर रूम. सो टिपिकली हमारे यहाँ होता ही है कि हम लैब्स बना देते हैं जी, IT लैब्स बन गई, कंप्यूटर्स लगा दिए, मगर देयर इज नो सोल्यूशन, देयर इज नो सपोर्ट, देयर इज नो थिंकिंग ऑन हाउ पीपल आर गोइंग टू यूज द टेक्नोलॉजी. तो मेरे ख्याल में इस तरह के सॉल्यूशंस पब्लिक सेक्टर के अंदर दे कैन हेल्प के अकाउंटेबिलिटी एक तो आ सकती है बड़ी क्लियरली, कि पता लगे कि हमारी क्लासरूम्स में क्या हो रहा है. स्टैंडर्डाइजेशन हो सकती है, आपको लर्निंग गैप्स और डाटा का बहुत कुछ पता चल सकता है, और बच्चों की इंगेजमेंट काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो सकती है. क्योंकि ये हमने देखा कि दे वर वेरी एक्साइटेड इन द क्लासरूम्स के जी, आज हम इस रूम में जा रहे हैं, आज हम इस तरह से पढ़ेंगे, और आज हम ये वीडियोस के थ्रू पढ़ेंगे, या हम असेसमेंट इस तरह इस्तेमाल करेंगे, हम कोई गेम एंड एक्टिविटी देखेंगे. तो दे यूज टू बी रियली एक्साइटेड. और फिर वो चीज़ें उनको घर में भी अवेलेबल हैं, जिन बच्चों के पास घर पे इंटरनेट एक्सेस है, या जिन बच्चों के पास नहीं है, दे कैन गो टू IT लैब जहाँ पे इंटरनेट है, दे कैन यूज देयर यूजर नेम पासवर्ड एंड दे कैन गेट द पर्सनलाइज्ड लर्निंग. So I think models like these, even in public sector, जहाँ पे we understand the dynamics of what will work, what will not work, a bit of stick, a bit of carrot, localizing the content, understanding, talking to them on WhatsApp. अब एक टीचर फॉर एग्जांपल इन अ रेगुलर मॉडल, अगर मैं एक टीचर हूँ, मैंने आपसे आपके सोल्यूशन की ट्रेनिंग ली, ब्लेंडेड लर्निंग की, और मैं पहले दिन आज यूज कर रहा हूँ सिस्टम, and something is not working. So one thing about teaching is that you don't like to fail. No teacher in the world like to get embarrassed in front of their students. ठीक है, so that brings that fear, psychological fear कि यार अच्छा ये नहीं use करता because I'm not comfortable in using this, right? So I think that we have to recognize that, and we have to provide the support for that, ताकि अगर वो कुछ नहीं कर रहा तो हम कहते थे आप बस व्हाट्सएप पे भेज दें, कोई मसला ही नहीं, आप हमें भेजें, हम आपको रिस्पॉन्ड करेंगे. तो इसी तरह हमने शुरू के दिनों में जब लॉन्च किया सिस्टम, तो एक टीचर ने हमें एक स्क्रीनशॉट भेजा और कहा ये मैंने ट्राई किया, पता नहीं आपने हमें एक ऐसा प्रोजेक्टर दे दिया है जो ऑन नहीं हो रहा. हमने कहा आप एक फ़ोटो इसकी ज़रा लें और हमें भेज दें. तो शी सेंट द फोटो. तो हम वी डिस्कवर्ड कि उसका जो आगे कैप था प्रोजेक्टर के आगे, वो रिमूव नहीं था, उतारा हुआ था. But you see, we immediately guided her कि आप ये, तो अगर आप एक ट्रेडिशनल मॉडल में सोचें इसको, तो टीचर वहां जाता, वो यूज करता, कहता है काम नहीं कर रहा, वेंडर को बुलाओ. 4 दिन के बाद या 6 दिन के बाद कोई बंदा आता और वो देखता जी क्यों नहीं यूज हो रहा, क्या नहीं हो रहा. सो दैट्स यू मिस द बोर्ड, बिकॉज वो टीचर एक्साइटेड था और ट्रेनिंग लेके आया था. तो यू हैव टू कीप ऑन एंगेजिंग टीचर्स एंड देन होल प्रिंसिपल्स भी ऐसे है कि जी उनके पास जाएं, उनको सिखाएं. बिकॉज अगर हमने एक चीज जो फाइंडिंग थी हमारी वो ये थी कि वो स्कूल जहाँ पे हेड टीचर इज इंटरेस्टेड एंड दे अंडरस्टैंड योर प्रोडक्ट एंड दे आर पुशिंग इट, ठीक है, वहां पे एडॉप्शन वाज सक्सेसफुल. दैट वाज वन ऑफ द लर्निंग्स दैट वी That's very encouraging, Talha, especially your feedback about what's happening in the public sector and the kind of response that you got is really, really encouraging. I will quickly make 2 comments about our conversation. Most of my questions are answered and I'll open the floor to questions. One, I think as a business person and as a faculty member in a business school, what I observed in your structure was it's very customer driven. I think you didn't leave any end of your product unresolved. Or usme maybe you were going extra length solving the problem for the school, solving it. So you're looking at the parent, you're looking at the student, you're looking at the school, and their management and the teachers. So I think wahan par mujhe lagta hai ki it's very, very customer driven, and probably that's why your product is what it is. One of our participants
and our startup in the Lahore cohort just went through your application and is saying what a wonderful job you're doing. And more than that, I'm very, very thankful that you shared with us the market size, because sometimes this data is not very accurately available for people and most of our cohorts. So, Talha, given that you're saying that there is a lot of potential, and I'm assuming from your discussion that we're also talking about the potential staying post-COVID also, कि COVID में तो ये रहेगा, but I don't personally see, and I think your conversation is also pointing towards that there's not going to be a very drastic decline in the use of digital knowledge in learning. So I think that's very encouraging also, and I think these will be the trends worldwide. I don't think I'll take up questions from my own list, but Ritika, we can have the first set of questions from our cohort. This is Daniel. Yes, Daniel, please introduce your startup and we can have your questions. Assalamualaikum, Daniel. Mr. Talha. My name is Daniel Mubashir. मेरा भी basically एक edtech का ही startup है, लेकिन I deal with augmented reality जो मैं integrate करता हूँ books के साथ ताकि learning experience को enhance कर सके. तो first of all, very interesting top. आपने almost हर चीज़ cover की हुई थी. I agree with your points कि जो हमारा पाकिस्तानी education system है ये थोड़ा सा weak है. Although हमारे पास काफी brilliant minds है, मतलब hard working students है, लेकिन somewhere along the way जैसे आपने कहा था 18 years of education के बाद वो मतलब 50% production rate है उसकी, या अगर हम CS graduates को देखें सिर्फ 5% hireable होते हैं. तो आपके ख्याल में इसका कॉज क्या है? क्या आपके ख्याल में अर्ली स्टेज एजुकेशन के अंदर प्रॉब्लम है, हमारे करिकुलम में है, हमारे हायर लेवल के ऊपर है, या अपॉर्चुनिटीज एट द एंड के ऊपर मसला आ जाता है जिससे वो इतना पॉलिश नहीं हो सकते? जी, I think education is not about transferring knowledge or curriculum ki. It's not just about that. It's when you go to बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो they go to school for a social experience, not only for learning कि जी मुझे न्यूमरेसी या लिटरेसी आ जाए या मुझे एक पर्टिकुलर हर ग्रेड की जो हमने स्किल्स डिफाइन कर दी हुई हैं इस अपने इस एजुकेशन सिस्टम में विच इज स्टैंडर्डाइज्ड फॉर एवरीवन, उसको मास्टर करना ही सब कुछ नहीं है. मेरे ख्याल में जो असल स्किल्स हैं वो ये हैं कि आपने क्रिटिकली कैसे चीज़ों को सोचना है, देखना है, अनसीन चीज़ों को आपने कैसे हैंडल करना है. सो वो जो 21st सेंचुरी स्किल्स हैं वो बच्चों को सिखाना वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इन माय ओपिनियन. एंड अगर हम उनको सिर्फ करिकुलम की स्किल्स के ऊपर फोकस करें, कहें कि अब मसलन ये कि मैंने जो अपनी कंप्यूटर साइंस की डिग्री के अंदर जो कोर्सेज किए थे उसमें से 80% कोर्सेज जो हैं मुझे अब याद भी नहीं है कि मैंने क्या पढ़े थे. एंड आई कैन बैठ के आप अगर सोचें कि 9th-10th के अंदर या 8th-7th के अंदर या आपकी मास्टर्स में या जो आपने कोर्सेज पढ़े थे, कौन सी चीज़ें आपको याद हैं? सिर्फ वो चीज़ें जो आप अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल कर रहे हैं. ठीक है. अनफॉर्चुनेटली हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, हम कहते हैं कि एग्ज़ाम, स्कोर, और सारी जो दुनिया है वो एग्ज़ाम और स्कोर के पीछे भाग रही है और वो ड्राइव कर रही है सारी चीज़ों को कि जी हमारे एजुकेशन सिस्टम में बच्चों का स्कोर आना चाहिए. और उसकी वजह यह है कि आप सिस्टम को गेम करना सीख लेते हैं कि आपने इसे कैसे गेम करना है, आपने कैसे अच्छा स्कोर लेना है, कैसे अच्छे मार्क्स लेने हैं, ट्यूशन्स के थ्रू, पास पेपर्स के थ्रू, एंड देन यू गेट द एग्ज़ाम्स, यू बिकम आप टॉप टियर में आ जाते हैं, फिर आप पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में सिलेक्ट हो जाते हैं मोस्टली हमारे बच्चे. मगर जब वो यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं तो आपको सुन के हैरानी होगी कि बहुत सारे जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं पब्लिक एंड प्राइवेट बोथ, उसके अंदर उनको फिर 3 महीने के ओरिएंटेशन सेशंस देने पड़ते हैं बेसिक साइंसेस पढ़ाने से पहले. ठीक है कि जी चूँकि बच्चे वहाँ पे एक उस लेवल के लिए तैयार नहीं हुए होते और वो जो उनकी एक्चुअल लर्निंग लेवल्स हैं पाकिस्तान में बच्चों के पीछे हैं एक तो, और दूसरा जो उनकी थिंकिंग का स्टाइल है वो ये है कि भाई बुक से पढ़ लो या स्कोर ले लो. और जहाँ पे भी कोई ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें अनफोर्सीन है, आउट ऑफ बुक है, एक नया प्रॉब्लम है, एक नई तरह की सिचुएशन है, चाहे वो पर्सनल हो या सोशल हो या वो किसी स्किल के हवाले से हो, देन दे स्टार्ट वो उसके लिए रेडी नहीं होते.
तो मेरी नज़र में अगर वो कहते हैं ना कि आप किसी को मछली दे के पकड़ के रोज़ाना दे सकते हैं या आप किसी को मछली पकड़ना सिखा सकते हैं, ठीक है। तो हम अपने बच्चों को मछली पकड़ना नहीं सिखा रहे और हम उनको सिर्फ मछली पकड़ के रोज़ दे रहे हैं। और जितने भी हमारे सिस्टम्स हैं अनफॉर्चुनेटली वो सारे ये फोकस हैं, पेरेंट्स का भी प्राइड ये है कि मेरे बच्चे ने ये स्कोर लिया, ये मार्क्स आए, मगर नोबडी केयर्स के उसके कॉन्सेप्ट्स कैसे हैं, वो कितना कॉन्फिडेंट है, वो कितना क्रिएटिव है। सो बच्चों जो पेरेंट्स का प्राइड है वो भी बच्चों की सक्सेस से लिंक अनफॉर्चुनेटली हमने सोसाइटी में कर दिया है। सो देयर आर मेनी फैक्टर्स जिसकी वजह से बच्चे जब निकलते हैं इस सिस्टम से और वो यूनिवर्सिटीज़ तक पहुंचते हैं तो एक तो करिकुलम की साइड पे उनका जो लर्निंग गैप होता है कई साल का, 3-4 साल का, 2-3 साल का, जो कॉन्सेप्ट्स उनको आने चाहिए वो नहीं आते। तो वो गैप के साथ फिर यूनिवर्सिटी में जाते हैं, फिर वो गैप चलता रहता है। इसी तरह जब वो यूनिवर्सिटी से बाहर निकलते हैं तो फिर वो गैप एक नई तरह की उसमें आ जाता है कि मे बी किसी ने 3.7 3.8 CGPA लिया हो, मगर फिर जॉब में जो स्किल्स चाहिए वो स्किल्स उनके पास नहीं होती, ठीक है। जॉब में जो टेक्नोलॉजीज जो इसी तरह की चीज़ें हैं जॉब के लिए कि जी अच्छा जी आपने रिलेशनशिप कैसे हैंडल करनी है, आपने क्लाइंट के कैसे डील करना है, आपने कमिटमेंट कैसे करनी है, आपने आपकी एथिक्स क्या हैं, आपकी बहुत सारी चीज़ें जो कि आप रियल लाइफ में जॉब में आपने सेल्फ लर्निंग कैसे करनी है, आर यू अ सेल्फ लर्नर, ठीक है। चूंकि मोस्टली तो अगर आप सेल्फ लर्नर्स बना दें तो फिर तो कोई भी बच्चा आप आज किसी के हाथ में आप टेक्नोलॉजी पकड़ा दें, कोई टूल दें या ना दें, और अगर वो सेल्फ लर्नर है तो वो 2 साल की एज में 3 साल की एज में दे विल फिगर आउट कि जी मैंने कैसे कोई चीज़ ढूंढनी है। कोई बच्चा है अगर वो आर्ट में इंटरेस्टेड है तो वो आर्ट की वीडियोस ढूंढना शुरू कर दें तो हज़ारों वीडियोस आ जाएंगी। तो यू डोंट नीड टू हैव अ टीचर जैसे पहले होता था कि जी एक टीचर आपको सिखाएगा, बट यू विल हैव स्टेप बाय स्टेप वीडियोस एवरी टॉपिक, अनबॉक्सिंग से लेके हर चीज़ यूट्यूब के ऊपर। सो आई थिंक जो सोर्सेज हैं नॉलेज के, जो टीचर का रोल है ना उसके उसके कई हिस्से हैं। उसमें एक जो हिस्सा है वो जो है वो है नॉलेज ट्रांसफर करने वाला, और वो मेरे ख्याल में चेंज हो गया, टेक्नोलॉजी उसको ले आई है मल्टीपल फॉर्म्स में। मगर जो और चीज़ें हैं जिसमें फीडबैक देना उनको, उनके कॉन्फिडेंस बिल्ड करना, उनके बिहेवियर को सही करना, बहुत सारे टीचर के रोल में ऐसी चीज़ें हैं जो टेक्नोलॉजी रिप्लेस नहीं कर सकती। तलहा, मेरा ख्याल है हमारे स्टार्टअप्स के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये भी होती है, जो नेक्स्ट दानियाल का क्वेश्चन है वो मोनेटाइजेशन के बारे में है कि हमने बहुत सारी फ्री प्रोडक्ट्स की भी बात की, आप बहुत प्रोडक्ट डेवलपमेंट भी कर रहे थे, मैं भी इसकी बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हमने प्रीवियसली बात कॉस्ट की ज्यादा की और रेवेन्यू की कम की। So there seems to be a lot of cost involved in your research process, prototyping, product development, hardware support. So Daniel is going to ask a question about the revenue stream. So Daniel, go ahead. So thank you, Saiba. So एडटेक के अंदर मैंने देखा तो जैसे आप काफ़ी ज़्यादा कंटेंट हैवी है एडटेक, आपने ऑलमोस्ट हंड्रेड्स ऑफ बुक्स प्रोड्यूस किए, थाउजेंड्स ऑफ वीडियोस है, मतलब हंड्रेड्स ऑफ गेम्स है। तो एट द एंड इसके अंदर से आपका ब्रेड एंड बटर क्या है, मतलब आप किधर से मोनेटाइज कर रहे हैं, आप कैसे मोनेटाइज कर रहे हैं, किन जगहों को आप हाथ लगाना नहीं चाह रहे, किन जगहों को आप हाथ लगा रहे हैं, लाइक व्हाट्स द स्वीट स्पॉट, क्योंकि एडटेक इज अ रिलेटिवली न्यू इंडस्ट्री। तो इसके अंदर जैसे हम जैसे नए स्टार्टअप्स के लिए भी काफ़ी इंसाइटफुल होगा जी। तो जैसे हमने जब स्टार्ट किया तो हमने कहा कि हम सिर्फ B2B पे फोकस करेंगे। इनिशियली B2C हमने लॉन्च किया लेकिन दैट वाज फॉर फ्री, राइट। एंड वी केप्ट ऑन ग्रोइंग स्कूल, वी फोकस ऑन स्कूल्स कि वो हमें पे करेंगे सोल्यूशन के लिए, बिकॉज इस सोल्यूशन से उनको और उनके बच्चों को, पेरेंट्स को और सबको फ़ायदा होगा। सो आई थिंक वी फोकस्ड ऑन स्कूल्स। और इसमें आई वुड एग्री के मोनेटाइजेशन, मतलब देखिए अगर आप एक B2B बिजनेस रन करते हैं उसकी ग्रोथ जो है ज़रा स्लो होगी, और अगर B2C बिजनेस है तो वो बिल्ड करना बहुत मुश्किल है ऑब्वियसली। लेकिन आपके सामने एग्जांपल है बायजू की इंडिया के अंदर, विच इज़ नाउ $12 बिलियन कंपनी, द मोस्ट वैल्यूएबल एडटेक कंपनी इन द वर्ल्ड। उन्होंने को 13 राउंड्स रेज किए अपनी उसके लिए। और इंटरेस्टिंगली दैट्स अ B2C कंपनी, बट आपको सुन के हैरानी होगी कि उनके जो सेल्स फोर्स है वो 2200 लोगों की सेल्स फोर्स है फॉर अ B2C प्रोडक्ट। Now this is EdTech. If you talk about any other B2C product, you would say, okay,
ई कॉमर्स है, मैं ये चीज़ बेच रहा हूँ, डायरेक्टली मैं बच्चे को बेच दूंगा, या मैं डायरेक्टली किसी कंज्यूमर को डायरेक्टली अपनी साइट पे लैंड कराऊंगा, अपनी ऐप पे लैंड कराऊंगा, इंस्टाग्राम पे ऐड करूंगा, पूरा जर्नी होगा एंड दे विल बिकम योर कस्टमर्स इमीडिएटली। मगर एडटेक के केस में, इवन B2C के में ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें उनका फ्यूचर इन्वॉल्व है, इसमें पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं, इसमें दे आर इनसिक्योर, दे थिंक के पता नहीं यार ये हम काम करेंगे तो इससे मतलब काम उल्टा ही ना हो जाए, नुकसान ही ना हो जाए। यू सी दिस क्रेडिबिलिटी फैक्टर। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि जो भी हम बिजनेस बना रहे हैं उसमें हाउ वी विल बिल्ड दैट क्रेडिबिलिटी, एंड टू बिल्ड दैट इफ यू लुक एट देम हाउ व्हाट दे डिड, कि वो शाहरुख खान को लाए, वो बड़े बड़े एक्टर्स को लाए, उन्होंने अपना जो, अगर आप उनकी रियल ग्रोथ देखें तो उस वक्त से होना शुरू हुई जब व्हेन दे डिड दिस ब्रांड बिल्डिंग, वेयर दे बिल्ड दिस होल ब्रांड के Baiju become a so big brand कि when they used to pick the phone and call anyone for sales, तो every parent used to know कि अच्छा ये Baiju है, Baiju वाले हमें कॉल कर रहे हैं, ठीक है। एंड देन देयर इज अ होल बड़ी अजीबोगरीब किस्म की उनकी अप्रोच है टू ब्रिंग द स्टूडेंट्स ऑन बोर्ड। वो आप स्टडी करें तो आप बड़े हैरान होंगे कि कैसे वो बच्चों को पूरे साल की सब्सक्रिप्शन भेजते हैं 29,000 इंडियन रुपीस के ऊपर, विच इज़ अ ह्यूज अमाउंट, पाकिस्तानी रुपयों में तकरीबन 60-70 हज़ार रुपये पर ईयर की वो एक दफ़ा में सब्सक्रिप्शन भेज देते हैं। तो ये कोई इतना छोटा जर्नी नहीं है, इसके पीछे बहुत मेहनत उन्होंने की है, जिसके उन्होंने अपना ब्रांड बिल्ड किया, अपनी क्रेडिबिलिटी इस्टेब्लिश किया है। बाइजू वॉज जैसे खुद एक वो था टीचर जो कि एग्ज़ाम प्रेप करवाया करता था डिफरेंट एग्ज़ाम्स की। तो मेरे ख्याल में मोनेटाइजेशन के लिए आपको ये देखना है कि आप किस साइड पे फोकस करें, B2B पे करें, B2C पे कर रहे हैं, और B2C पे कर रहे हैं तो क्या आप ऐसी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि एसेंशियल है, ठीक है। अगर आपकी सर्विस ऐसी है जो एसेंशियल नहीं है या गुड टू हैव है, इफ योर प्रोडक्ट इज गुड टू हैव कि उसके बगैर भी गुजारा हो सकता है, ठीक है, तो देन इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट to convince someone to spend money on a product which is good to have, right? So, which is not essential. So I think the best way to look at is what are the essential things while you are creating a product, के ऐसी कौन सी चीज़ है जो हम बनाएं जिसको जो किसी क्लाइंट की एक नीड को पूरा कर दें। आप कोई भी सक्सेसफुल उठा लें, ऐप देख लें आप, बाइकिया की, ग्रैब की, आप किसी करीम की एग्जांपल ले लें, they solved an actual problem in our lives, ठीक है, which was essential, कि जी हमें महंगी कैब्स मिलती थी, हम ओवर पे करना पड़ता था, सिक्योरिटी कोई नहीं होती थी, कि इलाकों में बुलाना उनको मुश्किल होता था। So they solved a genuine problem. So similarly in AdTech, whatever we want to do, we have to solve a genuine problem, and it should be something essential that is solving something for parents or schools or students in a genuine manner, जिसको एडॉप्ट किए बगैर उनका गुजारा ना हो। So Talha, Daniel का आपका ये suggestion है कि as far as it solves a general problem, people would be ready to pay, and such products would probably help a startup bring the business or scale up a business to a certain level. We really now a bit short of time. Talha, I hope you're not in a hurry. We have just a couple of more questions. No. Thank you, Daniel. Sure. We'll have we have questions from the Quetta cohort now. अब्रार नदीम एक कदम जी। अब्रार जी, अस्सलाम वालेकुम अब्रार, just a brief one-liner about your startup and then ask your question from Talha. Yeah ma'am. So I am Abrar Nadeem from Quetta and my startup is eKadam. It's basically a footwear brand which offers a lot of brands in a one room, footwear brands. So my question is that because it's an e-commerce store, so my question is that the people normally resist to change, that how to make potential clients adopt the technology, and what strategies do you suggest for an e-platform launch in a market where people resist to adopt technology? देखिए, मैं समझता हूँ कि बजाय इसके कि हम उन्हें अडॉप्ट करें, पहले एक अप्रोच ये भी तो हो सकती है ना कि जो अवेलेबल हैं अडॉप्ट करने के लिए हम उनको टारगेट करें। असल में होता यह है कि वी स्टार्टेड फोकसिंग ऑन द टारगेट कस्टमर्स जो कि रेडी नहीं होते,
जो टाइम लेते हैं। एडॉप्शन में एक कर्व होता है जिसमें एक अर्ली अडॉप्टर्स होते हैं, फिर लेट एक होते हैं इनोवेटर्स होते हैं, फिर अर्ली अडॉप्टर्स होते हैं, फिर फॉलोअर्स होते हैं, फिर एंड में बिल्कुल लैगर्ड्स होते हैं। तो हमें ये देखना है कि हमने किस जो इनोवेशन कर्व है उसमें किन लोगों पे फोकस करना है। अगर आप फोकस करेंगे ना इनोवेटर्स के ऊपर, ठीक है, या जो तो वो लोग जो हैं जल्दी अडॉप्ट करेंगे, और जो उसके बाद की नेक्स्ट 14% है, सो 2.5% इनोवेटर होते हैं, फिर आई थिंक 14% कर्व में होते हैं, इट्स अ बेल कर्व, और फिर 14% आपके होते हैं जो कि अर्ली अडॉप्टर्स होते हैं। सो यू हैव टू फोकस ऑन देम फर्स्ट। अगर आप अपनी एनर्जी उन पे लगाएंगे जो अभी तैयार नहीं हैं, तो वो बाद में आएंगे, वो फॉलोअर्स हैं, उन्होंने आना है, बट दे विल टेक टाइम। सो माय एडवाइस वुड बी कि आप जो भी, अगर जैसे आपका ई कॉमर्स स्टोर है, तो आपके पास इतने कस्टमर्स ऑनलाइन हैं पाकिस्तान के अंदर जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म के ऊपर इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, वो फेसबुक यूज़ करते हैं, वो गूगल के प्लेटफॉर्म्स, गूगल की चीज़ें यूज़ करते हैं। तो आपको ये देखना है कि आप किसको टारगेट कर रहे हैं। आप अर्ली, फॉर एग्जांपल अपने शूज़ के लिए यंग लोगों को टारगेट कर रहे हैं, आप स्पोर्ट्स खेलने वालों को टारगेट कर रहे हैं, आपके कस्टमर्स किन चैनल्स के ऊपर अवेलेबल हैं, उन चैनल्स पे जाके आप अगर करें तो इस वक्त तो देखें इंस्टाग्राम में भरी पड़ी, आई हैव मल्टीपल एग्जांपल्स जिसमें 4 प्रोडक्ट्स के ऊपर उन्होंने एक इंस्टाग्राम की साइट बनाई हुई है, दे सेलिंग दैट प्रोडक्ट and they are getting money because they are tapping the right channels. So we have to find out where our customers, where our early innovators मुश्किल से आपको मिलेंगे, लेकिन so go after early adopters. Innovators भी मिल जाएं अगर आपको, early adopters अगर आप उन 16% लोगों को टैप करें to begin with in the bell curve, तो बाकी जो आपकी फॉलोअर्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता आ जाएंगे जब वो देखेंगे अच्छा ये भी यूज़ कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है। तो उनकी आप, मेरे ख्याल में हमें परेशानी नहीं करनी चाहिए, हमें That's फोकस a very करना good चाहिए। point, Tala. Yeah, that also answers one of the questions that Saira of Shal Katyor asked from Quetta also. Okay, how do retailers, manufacturers usually don't respond to small new businesses? So you're saying rather than going to people who are not ready, go to people who are ready. I think that's Absolutely. a very great point to give. Thank you, Ibrad. Thank you so much. Itaka, can we have the next question? So we have Shazor Khan, EastGuard from Quetta. Hello, Assalamu alaikum. Walaikum salam, Shazur. So my name is Shazur Khan. I'm the founder of EastCAD. It's an online marketplace for construction industry where material vendors and contractors and architects come together and take benefit from each other just to put ease in the post-construction process. Glad to hear your inspiring journey of knowledge platform. I would like to ask that what was some of the hardships that you faced during the journey of knowledge platforms? And the second thing that I want to ask is that what was some of your important value proposition that you are providing to your customer segments that your competitors is not focusing on? Thank you. आई थिंक आई थिंक जो एक तो पहली मुश्किल थी हमें पेश आई वो ये थी कि हम एक सर्विसेज कंपनी थे और हम कॉर्पोरेट लर्निंग के अंदर काम कर रहे थे। तो जब हमने डिसाइड किया कि हमने एक प्रोडक्ट कंपनी बनना है और हम अब हमारे क्लाइंट्स जो हैं वो सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज और एबर्ट लेबॉर्ट्रीज और सिंगापुर एयरलाइन और जेपी मॉर्गन, इनकी बजाय अब वो स्कूल्स होंगे और स्टूडेंट्स होंगे और टीचर्स होंगे। तो इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट ट्रांजिशन फॉर द टीम। मतलब वी हैड अ टीम एट दैट टाइम अबाउट 40 पीपल, नॉट रियली दिस बिग टीम, जो कि अब ज़्यादा हम कंटेंट की टीम हमने पाकिस्तान में बिल्ड की है फॉर एजुकेशन एंड देन फॉर फॉर सेल्स एंड एंगेजमेंट, आउटरीच एंड एंगेजमेंट। तो एक बहुत बड़ा माइंड शिफ्ट था, ये माइंडसेट का चेंज था, जिसमें ये था कि शायद ये कैसे चलेगा, कौन चलाएगा, कौन इसमें, देयर वाज नो एंड मोस्ट ऑफ द पीपल। सो वो जो इंटरनल चेंज था वो मेरे ख्याल में एक सबसे बड़ा चैलेंज था, जिसमें वी हैड टू कन्विंस आवर पीपल टू चेंज। आई मीन अगर आप एक नया स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे हैं और उसमें आप लोगों को ला रहे हैं और वो जब आ रहे हैं और वो चीज़ें उस तरह से देख रहे हैं तो फिर चेंज इतना मुश्किल नहीं होता है।
तो that was, I think, one of the key difficulties we had. Second difficulty, I would say that we needed content. We needed money for content development, and where initially when we used to go and तो कोई कंटेंट जो है वो फंड करने के लिए तैयार नहीं होता था. और पाकिस्तान में इवन नाउ आई बिलीव के अ लॉट नीड्स टू बी इन्वेस्टेड इन डिजिटल कंटेंट डेवलपमेंट, बिकॉज कंटेंट इज द किंग. जिसके पास अच्छा कंटेंट होगा, जो लोकलाइज होगा, एटलीस्ट अगर आप बेशक B2C कर रहे हैं, B2B कर रहे हैं, उसमें इट विल बी हेल्पफुल फॉर देम. सो वो दूसरा चैलेंज था जिसमें टू गेट हाउ टू गेट द इनिशियल फंडिंग टू क्रिएट अ प्रोडक्ट. क्योंकि पहले हमारे पास सिर्फ 2 सब्जेक्ट्स थे. हमने खुद एक पहले बनाया सब्जेक्ट, फिर एक और 2-3 कर लिए, 9th grade मैथ और इंग्लिश. और जब हम एक स्कूल के पास जाते थे तो वो हमारी प्रोडक्ट लेते ही नहीं थे, बिकॉज इट वॉज नॉट कम्प्लीट, राइट. बिकॉज इट वॉज लाइक जी अच्छा अभी तो ये सिर्फ 9th-10th के 2 सब्जेक्ट के लिए, तो अब बाकी के लिए हम क्या करें. So I think that was a difficult time, and then we thought about getting funding. हमने फिर grants के लिए apply किया. We got a grant Ilm Ideas 1 में भी, जिससे हमने 5 स्कूल में पायलट किया. फिर हमने उसकी एक्सटर्नल एवेल्यूएशन करवाई, उसको एक थर्ड पार्टी से रिव्यू करवाया, जिसके अंदर वी शोड के इसमें लर्निंग आउटकम इम्प्रूवमेंट्स हो रही हैं. फिर हम जब इल्म आइडियाज़ 2 आया, फिर हमने दोबारा अप्लाई किया उस ग्रांट में. बट दे सेड कि हम आपको कंटेंट के लिए वो थोड़े से पैसे देंगे, आप इस प्रोडक्ट को कमर्शलाइज करें. एंड दैट वाज अ ग्रेट आइडिया. अनलाइक अदर पीपल who got the funding, we got the funding and we used it to build the product. At the same, we were creating content, we were hiring people on the sales side, engagement side. और उनका साथ जो हमारा टारगेट था वो था कि हमने 200 स्कूल को ये प्रोडक्ट सेल करनी है, right? So we had to start getting into the selling mode right from the start. So that was the key difference. It was difficult to get money from donors, but we didn't lose. I mean, when we applied for one grant, we failed. We went back to them. We asked them, हमने क्या गलत किया, हमारे proposal में क्या गलत था, आप लोग क्या expect कर रहे थे, हमने क्या किया. Nobody does that. If you apply for a grant and you are not selected, how many people go to to meet them and ask कि भाई हमने क्या गलत किया, हमें क्या improve करना चाहिए. So we applied twice or thrice, I think, उसके बाद, पहली grant के बाद, and then we were selected. So I think you have to keep trying. That was a difficult time to gain momentum, but it happens. It's I think जो entrepreneurs हैं उनको पता होना चाहिए कि it's a very difficult long journey. इसमें ये नहीं है कि अगर आपकी प्रोडक्ट क्या है, आपका आइडिया क्या है, आप में ग्रिट कितनी है, आप उसको कैसे अपने आप को अडेप्ट करते हैं, आप ये देखते हैं कि क्या चीज़ काम कर रही है, क्या नहीं कर रही है, और आप ये नहीं है कि उसी को ड्रैग करते रहें. सो यू हैव टू बी वेरी proactive in changing and thinking about your products. Thank you, Talha. This is also a great advice for everyone watching, especially people who are in the entrepreneurial process. Ritika, can we have the next question? Just 2 more to go. So we have Umar Masood. My name is Umar Masood from Furniture Magenta, startup incubated in Cohort 4 and IC Quetta. I would like to ask, what are the prerequisites of building a customer base from scratch? I think prerequisite ये है कि आपको अपने customers का पता होना चाहिए. You should know your customers very well, very well. First of all, वो हैं कौन, क्योंकि unfortunately होता ही है कि हमारे ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता कि उनके customers कौन हैं. And often we are working or building product for wrong customers. ठीक है. So first of all, आपको अपने customers का पता होना चाहिए. और दूसरा ये कि उनके बारे में कि उनके पेन पॉइंट्स क्या हैं जिनके लिए आप ये प्रोडक्ट बना रहे हैं, जिन्होंने यूज़ करनी है. जैसे बच्चे हैं, जब हमने काम करना शुरू किया तो हमें आइडिया नहीं था 4-5 साल पहले इसमें. बट आई थिंक व्हाट वी डिड वाज कि हमने वी स्टार्टेड वर्किंग विद देम. हमने उनको इंटरव्यू किया, हमने उन क्लासेस में जाके देखा, हमने टीचर्स के साथ बात की. एंड वी केप्ट ऑन आस्किंग, वी केप्ट ऑन ऑब्जर्विंग, वी केप्ट ऑन लर्निंग. ये जो आपके एंड यूजर्स हैं उनको जानना कि उनकी पेन पॉइंट्स क्या हैं जिनके लिए हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, ये जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं उनका मसला कैसे हल करेगी. और अगर
फिर उनकी आप टेस्ट भी कर सकते हैं। अब आजकल तो मॉडर्न प्रोडक्ट डेवलपमेंट के अंदर यू डोंट नीड टू एक्चुअली build your actual product. You can do a lot of prototyping and you know workable you know prototypes जिसके अंदर आप उनको एक यूजर एक्सपीरियंस करा के फीडबैक भी ले सकते हैं कि जी is this something that will solve your problem, are you excited about it, you can see your reactions, you can, so I think it's about understanding your customers. Customers, it's all about that. And That's a on great internal insight, Talha. yeah, and from the internal side, I would say it's about people. You know, knowing who you are working with, आप लोगों की जो different team में लोग हैं, उनकी motivations क्या हैं, उनकी strengths क्या हैं, उनकी weaknesses क्या हैं, क्या आप उनको उनकी strengths पे use कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ठीक है? So I think from inside it's people, from outside it's customer. That's a very valid point, Talha. I'm so glad you mentioned that because we keep reinforcing that during the training also. Etika, can we have the last question? So the last question is from cohort 6 of NIC Lahore by Edmi Ziaul Haq. It's also an e-learning platform. So the question is, digital content has a high threat of cyber theft, you know. So how can startups make sure their content is secured? Well, you cannot really ensure that, to be very honest. I would say that. For example, अगर हमारी कोई वीडियोज़ हैं ऑनलाइन पड़ी हैं और हमारे प्लेटफॉर्म के अंदर से एक्सेसिबल हैं, तो मैं उसको स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकता हूँ, राइट, यूजिंग अ स्क्रीन रिकॉर्डर. So I think it's very difficult to stop that. You can make it difficult from happening कि अगर आप फॉर एग्जांपल हम स्कूल्स को दे रहे हैं तो हम उनको इनक्रिप्ट करके दें कि वो खुली ना पड़ी हों एंड ऑल दैट on their laptops, data should be protected and everything. You make it difficult, but seeing उसको एक फुल प्रूफ बिल्कुल बना दें, आई थिंक इट्स गोइंग टू बी डिफिकल्ट. हो सकता है डेफिनेटली, ख़ास तौर पे, लेकिन वीडियो के केस में वीडियो कंटेंट जो मैं समझता हूँ उसको प्रोटेक्ट करना बहुत मुश्किल है इस तरह से. तो मेरे ख्याल में इस चीज़ पे वरी नहीं करनी चाहिए. अब जैसे हम समझते हैं कि इसीलिए हमने इनिशियली अपनी जो सारी वीडियोस थी वो फ्री ऑनलाइन B2C में प्रोवाइड भी करती बच्चों को, because we didn't care कि स्कूल अगर कॉपी करता है यूज करता है, because for us the data was the original thing. You see, the future is about data. If you have data of learning, of you know how they're using, of behaviors, you know, तो ये भी आप WhatsApp देख लें, हर मतलब दुनिया में हर चीज जो फ्यूचर में, it's about how you, what data points you have on your customers and their behaviors, right? So for us it was data. So we said कि भाई हम डाटा पे फोकस करेंगे ज़्यादा. द डाटा एंड इनसाइट्स वी आर गेटिंग एंड डैशबोर्ड्स, वो चीज़ हमारे सिस्टम से कोई हैक नहीं कर सकता. So Talha, so do you think we should worry about less about somebody copying our product and more on developing newer ones, which are more data driven, which are more recent? एक ये भी तो साइड हो सकती है कि बजाय उसको करो खुद न्यू प्रोडक्ट्स लाते जाओ, जो कॉपी हो गई उसको पीछे छोड़ते जाओ. ये भी एक तो बिजनेस फिलॉसफी है. व्हाट डू यू से अबाउट दैट? बिल्कुल. देखें, जो आपकी प्रोडक्ट है वो आपको कॉन्टिन्यूसली इवॉल्व करनी पड़ेगी, यू नो, उसके अंदर नए फीचर्स, उसके अंदर यू नो, ताकि वरना तो आपकी बैरियर टू एंट्री तो डिफिकल्ट होनी चाहिए ना. अगर आपने एक बेसिक चीज़ बना दी और कल को मैं देखता हूँ और मैं कहता हूँ मैं भी यही चीज़ बना देता हूँ, तो आपकी बैरियर टू एंट्री क्या है? ठीक है, कोई भी नहीं है उसमें. मैं एक बड़ी कंपनी आता हूँ, मैं डिसाइड करता हूँ कि आपका छोटा स्टार्टअप है और मैं आके कहता हूँ मैं इसमें पैसे लगाता हूँ, मेरा ब्रांड बड़ा है, मैं एक इस आइडिया में इन्वेस्ट कर देता हूँ. So I think you have to continue evolving this. So this is difficult thing. So it's like moving your startup on all angles equally. You know, whether it's you know, start content, product development है, इसके अंदर marketing है, revenue है. You know, I think it's very important to you know, start revenue अपना जो है early on. जितना जल्दी आप monetization उसकी start कर दें, उतना आपके पास ज़्यादा bandwidth आएगी to, you know, invest in all these areas, whether it's product development, it's sales, it's, you know, marketing, it's so I think that's the key कि आपके पास कितना burn rate है, आपने क्या plan किया और उसमें आप कितना जल्दी रेज कर सकते हैं.
Okay. So Talha, professionally, I think you've given them a lot of advice on how to take on the business. We've seen how, as a management team, you were taking your brand along, what kind of philosophy and ethics you had. I think it would be great if you can leave our listeners and our cohorts with a lasting thought on any personality or personal trait that is a key success factor. I think I would like to know, what is it in Talha that makes him what he is today? I think it's believe in yourself, and not really, you know, think about what other people think about you. So everyone, I think it's you have to go through the journey of self discovery and self awareness कि आपके अंदर क्या strengths हैं जो किसी और में नहीं है, you know. What are the specific strengths that you have? And I think, you know, as individuals and also as team members, when we are building a team, these are very important things that you realize कि आप कैसे लोगों की स्ट्रेंथ्स को इकट्ठा करेंगे, जहाँ पे वीकनेसेस हैं वहाँ कैसे कम्प्लीमेंट करेंगे, कैसे किन लोगों को किन रोल में लाएंगे, खुद आप रोल क्या प्ले करेंगे. So I think as at a personal level, my advice would be to have faith in yourself first, and second, know yourself. You know, have that, you know, self-awareness. You need to know self-awareness. Masalan, I think a lot of people don't take जो personality test होता है, you know, there are different tests available to know कि आप 15 मिनट लगाएं, आपको पता चलेगा कि आपका डीएनए, पर्सनालिटी डीएनए क्या है, आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, आप किस ग्रुप में फॉल करते हैं, और यहाँ पे क्या स्ट्रेंथ्स हैं, क्या वीकनेसेस हैं आपकी. तो आई थिंक यू नीड टू नो अबाउट योरसेल्फ. यू नीड टू आस्क अदर पीपल व्हाट दे थिंक अबाउट यू एज वेल, बट एट द सेम टाइम you don't need to have their you know assurance. वो जो self assurance है बहुत important है, खास तौर पे आई थिंक फॉर एन एंटरप्रेन्योर, you know, जिसने बहुत सारी चीज़ों को अकेले से गुजरना होता है, और वो जो बिलीव है इन द प्रोडक्ट, वो फेथ होना वो अपने आप में, और कि जी ये हो सकता है. इफ़ यू बिलीव इन योर प्रोडक्ट एंड आइडिया, तो आई थिंक यू कैन कंटिन्यू गोइंग. दैट्स what I would say. So Talha, thank you so much. स्टीव जॉब ने अपनी कमेंसमेंट जो एड्रेस था ना, उसके अंदर एंड में उसने कहा था स्टे हंग्री स्टे फूलिश. So that's what I would say. Stay hungry, stay foolish, and believe that everything you do basically connects when you look backwards. So I really love and like that quote. That's a very great wrap up, Talha. Thank you so much for sharing information about your company, about your journey. It's priceless for our cohorts as well as for the National Incubation Center and us personally. It was a really engaging conversation. We almost took 2 hours when usually we take 1.5 hours, just because you were opening up, and it was a very, very candid. I think your presentation also told us about so many things that most of us really struggle with in knowing the size, knowing the structure of the market, understanding the landscape of the market. So it's very, very, I can't thank you enough for opening up to all of us, and wishing the Knowledge Platform the very best of luck in this journey. And I hope that this e-learning changes the educational landscape of Pakistan. Inshallah. Thank you so much. I am honored that you know you invited me on this forum, and I would like to thank you, the NIC team, and all the participants, and you know, who attended this session and took out time. Thank you so much. Thank you, Talha.